Jai Hind everyone, welcome back to the Patriotic IS. Let's start our current affairs classes. Now, today it is only in the online mode. And we will start by solving the practice question that we have covered into the previous session. The topic that we have covered already in the previous session. So, start with the first question. Consider following statement regarding Election Commission of India. First statement is talking about the Election Commission is constitutional body established under Article 324. The second statement talking about the Representation of People's Act 1951 gives Election Commission of India power to deregister political parties. Third statement is talking about Election Commission is responsible to conduct elections to Parliament, State Legislature and Office of President and Vice President. Okay. Fourth statement, the Chief Election Commission can be removed in the same manner as the Supreme Court judge. So you have to answer how many of the above statements are correct. First, Election Commission is a constitutional body established under Article 324. Already we studied yesterday. After that, we further studied that there was the other provision, like the right to vote under Article 326 and other power and functions that has been posed into the Election Commission of India. So the correct this will be the correct. First statement is correct. Second statement, the Representation of People Act 1950 gives Election Commission of India power to deregister political parties. So here there is a trap here. So how many of you think this is correct? The second point is correct or incorrect? Please answer. Those who are watching online, they can answer. I will responding from your responses. Anyone? Second is correct or incorrect? Second is incorrect. The Election Commission of India has the power for the registration, not for the deregister. Still there is the debate that whether we should give power to deregister with the Election Commission of India, particularly to handle the Model Code of Conduct. Model Code of Conduct, that is just a conventional, not the statutory provision has provided. And if there will be some power with the Election Commission of India to deregister, we can do better for the implementation of different code of conduct during the elections. So second will be incorrect. Third, the Election Commission is responsible for conduct election Parliament, legislature, state legislature as well as President and Vice President. So this is correct. Fourth statement, the Chief Election Commission can be removed in the same manner as the judges of the Supreme Court. So 4 is correct. So the correct answer will be C. Next question. Consider following statement regarding Food Safety and Standard Authority of India, FSSAI. The first statement is talking about the FSSAI is a statutory body under Ministry of Agriculture, Government of India. So how many of you think this is correct? The second statement is talking about it sets scientific food standard and regulates the manufacture, storage, distribution, sales and import of the good products in India. So how many of you think the first statement is correct? First statement is incorrect because it is not under Ministry of Agriculture, but it is under Ministry of Health and the Women Welfare. So first is incorrect, second is correct because it has regulatory power with respect to the storage, sale and import of food products in India. Now the debate is going on with respect to the labeling, how the labeling should be there on the food products. Please sit. Next question. Consider following statement regarding Jan Vishwas Amendment Provision Act 2023. First point, the Act decriminalize offences in 42 Central Act across the 19 ministries. Second, it replaces all form of criminal penalties with monetary fines. Third, the Act appoints adjudicating officers to handle minor offence instead of court. Fourth,
statement, the Indian Penal Code 1860 is one of the key law amended under this act. Please answer how many of you think that this is correct. First, पहला सही है या गलत है? हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम? हिंदी मीडियम. ओके. कितने लोगों को लगता है कि सेकंड इज करेक्ट? पहला करेक्ट है. सेकंड, इट रिप्लेसेज ऑल फॉर्म ऑफ. हियर यहाँ पे है ऑल. दिस इज नॉट फॉर द ऑल फॉर्म, ओनली फॉर द माइनर ऑफेंसेज. इट हैज रिप्लेस द क्रिमिनल पेनाल्टीज एंड रिप्लेस विद द मॉनेटरी पेनाल्टी. तो ये इनकरेक्ट है. Then third statement, it appoint adjudicating officer to handle minor offences instead of court. Here, to expedite the process of adjudication, इन्होंने replace किया है court को with the adjudicating officer. So ये सही है. Last, the Indian Penal Code 1860s is one of key law amended under this act. इसके अंडर में इंडियन पेनल कोड को हमने नहीं अमेंड किया है, हमने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड किया है. सो ये इनकरेक्ट है. सो द करेक्ट आंसर विल बी ओनली 2, क्योंकि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग मेजर इलेक्शन रिलेटेड डेवलपमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कब हमने स्टार्ट किया था. दूसरा पॉइंट है फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया कब हुआ था. थर्ड है द पासेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951. एंड फोर्थ है द इंट्रोडक्शन ऑफ वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, जिसको वीवीपैट भी कहते हैं. तो इसको अरेंज करना है कब पहले स्टार्ट हुआ था, कौन सा प्रोविजन और कौन सा बाद में स्टार्ट हुआ था. ठीक है, तो स्टार्टिंग को अर्ली स्टेज टू द लैटर स्टेज. तो सबसे पहले क्या होगा इसमें, व्हाट विल बी द फर्स्ट. सबसे पहली बात कि आप ऐसे इसको आप रिमूव कर देंगे, ये बात का है. ठीक है, फिर आप देखेंगे फर्स्ट जनरल इलेक्शन, ऑलरेडी यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, पासेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट एंड द फर्स्ट जनरल इलेक्शन. सबसे पहले क्या हुआ होगा, फर्स्ट जनरल इलेक्शन, और इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा क्योंकि वीवीपैट तो बहुत बात का है, ईवीएम भी बहुत बात का है. तो ये हम हमेशा लास्ट में करेंगे. पहले या तो दूसरा आएगा या तो तीसरा आएगा. तो दूसरा या तीसरा पहले नंबर पे किस में है, दूसरा या तीसरा हर सब में है. तो चारों में ही कंफ्यूजन है, लेकिन इसमें ये पहले को दूसरे नंबर पे दे दिया, तो ये सी एंड डी ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा. अब हमें देखना है कि ए एंड बी में कौन सा सही है. तो पहले हमें ये पता चल गया कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन और पासेज ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इन दोनों में क्या पहले होगा, पहले एक्ट होगा तब इलेक्शन होगा, क्योंकि इलेक्शन किस तरीके से कंडक्ट कराया जाए वो तो एक्ट में लिखा होगा. तो इसीलिए थर्ड पहले होगा और दो बाद में होगा. तो यहां से आप आंसर निकाल सकते हैं, बी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, Greenland holds significant economic and geopolitical importance due to its reserves of the rare earth minerals. यहाँ पे दिया है कि ग्रीनलैंड एक देश का नाम है और वहाँ पे इस समय काफी न्यूज में है क्योंकि यहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स, जो बहुत ही दुर्लभ मिनरल्स हैं, वो वहाँ पे पाए जाते हैं. ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट करता है कि रेयर अर्थ मिनरल्स आर क्रूशियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग high-tech products including semiconductor, electric vehicles and renewable energy technology. ठीक है, तो कौन सा सही है, पहला स्टेटमेंट सही है या गलत है. ग्रीनलैंड अभी न्यूज में है. क्यों ग्रीनलैंड न्यूज में है, अभी ट्रंप ने बोला है कि हमें बेच दीजिए. अभी हम देख रहे हैं ट्रंप जब से प्रेसिडेंट हुए हैं तब से वो ग्रीनलैंड पे यूएस का अपना सोवर्निटी, अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे हैं, और ग्रीनलैंड पे जो अधिकार है वो दूसरे देश का है, वो भी हम आगे देखेंगे. तो इसलिए ये न्यूज में है और ये बात सही है कि यहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स काफी प्रचुर मात्रा में है, इसीलिए ये बहुत डिबेट है, लोग वहाँ बहुत कम है.
सेकेंड स्टेटमेंट कर रहा है कि रेयर अर्थ मिनरल्स का यूज कहाँ कहाँ है। तो क्रूशियल टेक्नोलॉजी में इसका यूज हो रहा है, जैसे अभी हम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें इसका यूज है, जहाँ पे सेमीकंडक्टर्स का भी यूज होता है। सेमीकंडक्टर्स का और यूज कहाँ होता है, जो हम लोग आजकल रिन्यूएबल एनर्जी बना रहे हैं, जैसे हम लोग देखते हैं सोलर पैनल अपने छतों पे लगाते हैं, उसमें सेमीकंडक्टर का यूज होता है। इसी में ही नहीं, जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनमें जब हम स्टोरेज करते हैं तो उसमें आप देखिएगा रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ये सब का यूज होता है। तो हर जगह वो यूज है रिन्यूएबल एनर्जी, यहाँ तक कि जो हमारे मिसाइल्स टेक्नोलॉजी है उसमें भी यूज है। तो ये भी सही है और इसीलिए ये ज्यादा न्यूज में है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों सही है। और स्टेटमेंट 2 एक को एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि ये बता रहा है कि रेयर अर्थ मिनरल्स है, तभी तो ये जियोपॉलिटिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है, क्योंकि सबको चाहिए ना वो रेयर अर्थ मिनरल्स, यूएस को चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही लग रहा है, पहला ए दिया है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो क्या लगता है यही सही है, क्योंकि स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों सही है और कहीं ना कहीं ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एक्सरसाइज सोवरिन ओवर ग्रीनलैंड। जो ग्रीनलैंड है उस पर किस कंट्री का सोवर्निटी है, संप्रभुत्व। संप्रभुत्व किसका है, इसमें दिया है कनाडा, नॉर्वे, डेनमार्क एंड आइसलैंड। नॉर्वे गलत, और गेस। इट इज द डेनमार्क। डेनमार्क का है, जिनको हम लोग डच भी कहते हैं, ठीक है, डेन, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी। कल जो टॉपिक था उस पे हमने एक क्वेश्चन मेंस के लिए दिया था लिखने के लिए, द रिप्लेसमेंट ऑफ कॉलोनियल एरा लेबर लॉ विद मॉडर्न लेबर कोड इज कंसीडर्ड ए मेजर रिफॉर्म, yet their implementation remain stalled. Analyze the impact of delayed labor reforms on India's investment climate and workforce productivity. ये पूछ रहा है कि औपनिवेशिक युग में श्रम कानूनों को आधुनिक श्रम संहिताओं के प्रतिस्थान करना एक प्रमुख सुधार माना जाता है, फिर भी उनकी कार्यान्वयन प्रक्रिया रुकी हुई है। भारत के निवेश माहौल और श्रमिक उत्पादकता पर विलंबित श्रम सुधारों के प्रभाव का विश्लेषण करें। तो ओवरऑल यही कहा जा रहा है कि कॉलोनियल एरा जो लेबर लॉ था उसके कारण अभी जो मॉडर्न इंडस्ट्री है वो हम रन नहीं कर सकते हैं, काफी दिक्कत आ रहा है, क्योंकि कॉलोनियल एरा था वो कंट्रोल करने के लिए था। अभी हम चाहते हैं कि बिजनेसमैन को ज्यादा से ज्यादा पावर दें ताकि बिजनेसेस बढ़े, और जब बिजनेसेस बढ़ेंगे तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ेगा तो ओवरऑल ग्रोथ बढ़ेगा, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। तो ये ओवरऑल हमारा एम है। हमने इसी कोशिश में लेबर कोड लाया है, लेकिन लेबर कोड को सही से हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो उसी का बोलना है कि एनालाइज करना है कि क्यों डिले हो रहा है, और इस डिलेड लेबर रिफॉर्म का इन्वेस्टमेंट और वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इन्वेस्टमेंट का मतलब बाहर से जो लोग आके इन्वेस्ट करते हैं वो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, किस तरीके का उनके पास माहौल है, और जो हमारे वर्कफोर्स है जो लोग काम करते हैं उनका प्रोडक्शन कैसे है, कि खुश होकर काम कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, कि दिक्कतें आ रही हैं। ओवरऑल ये एनालाइज करना है। तो हाउ वी कैन स्टार्ट, इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे। आंसर को लिखना है 250 वर्ड में। तो आपके पास क्या होना चाहिए, इस टाइप जब क्वेश्चन का वर्ड लिमिट 250 हो तो ऐसे क्वेश्चन में हम पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे कि क्या रीजन है, डायरेक्ट पूछा है कि कंसीडर द मेजर रिफॉर्म एंड इट इम्प्लीमेंटेशन रिमेन स्टॉल्ड, तो क्या रीजन है कि इसको हम लागू नहीं कर पा रहे हैं। और फिर दूसरे पार्ट में हम जाएंगे कि इसका इम्पैक्ट कहाँ पे हो रहा है, इन्वेस्टमेंट पे, और दूसरा वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी पे। ये हमारा 3 है, फिर हम वे फॉरवर्ड देंगे, उसके बाद कंक्लूड करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हैं, यू हैव टू हाईलाइट कि कॉलोनियल एरा जो जितने भी लॉ था उसमें किस तरीके का रिस्ट्रिक्शन था। रिस्ट्रिक्शन जैसे कि परमिट राज था, लाइसेंसिंग राज था, और इसके कारण क्या है, बिजनेसमैन को ये लगता था कि
डिफरेंट टाइप का लेबर कोड अगर थोड़ा भी वायलेट करेंगे तो एक तो आके जितने भी इंस्पेक्टर हैं वो हमें परेशान करेंगे, और उनको ये भी थ्रेट रहता था कि कहीं ना कहीं कंपनी को बंद भी कर सकते हैं, कहीं ना कहीं उनको इम्प्रीजनमेंट हो सकता है, ये सब चीजें थी। तो अभी आप देखिएगा जितने भी रिफॉर्म कर रहे हैं 4 लेवल कोड में हमने कोशिश किया है कि जितना भी जेल का टर्म है, छोटे मोटे कुछ फाइल नहीं किया, कुछ आपने एप्लीकेशन नहीं डाला, तो वो हमने हटाने की कोशिश की है। और एक जगह हम क्लब करके सोच रहे हैं कि 4 ही कोड बना दे ताकि आपको 50 तरीके का अलग अलग लॉ को रेफर नहीं करना पड़े। तो हमने इसको रिड्यूस करके 4 लेवल कोड में रिड्यूस कर दिया है। लेकिन अभी भी दिक्कत इसलिए है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स अपने पावर को जाने नहीं देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पावर को कैप्चर करके रखा जाए। जितना टाइम आप जाएंगे ब्यूरोक्रेट से कुछ पास करवाने, उतना टाइम आप उनसे डील करेंगे, उतना टाइम उनको मौका मिलेगा करप्शन करने का, बराबरी मांगने का। जैसे कोई भी फैक्ट्री है, अब जाएगा अपना पास कराने की यहाँ पे फायर का जो है वो प्रोविजन सही है, तो फायर डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर होगा वो क्या कहेगा, कमी निकालेगा, 10 कमी निकालेगा, तो वो जो इंडस्ट्रियल पर्सन है, जो बिजनेसमैन है, वो क्या करेगा, कहेगा कुछ पैसे ले लीजिए, पास कर दीजिए, क्योंकि उसको जल्दी जल्दी अपना काम कराना है कैसे भी। तो ये क्या होता है कि ब्यूरोक्रेटिक्स जो हर्डल है उसके कारण हम जल्दी से इसको लागू नहीं कर पा रहे। दूसरी जो कमी है वो कि हम डिजिटाइज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हम जितना चीज डिजिटल मोड में करेंगे, जैसे मानिए मुझे किसी इंडस्ट्रियल पर्सन को जाना है कुछ पास कराने, फायर डिपार्टमेंट से ही जाने के बदले वो ऑनलाइन एप्लीकेशन दे, तो ऑफिसर से फेस टू फेस बात नहीं होगा, उधर से जो भी रिप्लाई आएगा वो प्रोफेशनल होगा, वो इस होप में नहीं आएगा कि बुलाऊंगा, बात होगा, 10 कमी निकालूंगा तो पैसे देगा। जब हम मिलेंगे ही नहीं तो पैसे, ब्राइबिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। तो डिजिटल मोड हम जितना करें तो उतना हम क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी और उतना चीजों को हम तेजी से कर सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे जो कई क्लियरेंस है हम वन विंडो पे कर दें, कि जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट को जाना है, कहीं पे लैंड लेना है तो लैंड क्लियरेंस करना पड़ेगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी वाले डिपार्टमेंट का करना पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग हर जगह पे जाना पड़ेगा, फूड सेफ्टी का स्टैंडर्ड है वो उसको लिए अलग जाना पड़ेगा। तो क्यों ना हम एक ऑफिस बना दें जहां बिजनेसमैन जाए और सारे एप्लीकेशन वहीं पे देख के सारे ऑफिस आपस में घुमा के उसको एक जगह दे दे, उसको 10 जगह नहीं जाना पड़े, क्योंकि वो 10 जगह जाएगा तो 10 ऑफिसर से बात करेगा और 10 ऑफिसर 10 तरीके से ब्राइबरी लेने की कोशिश करेंगे। तो एक ही विंडो का अगर क्लियरेंस हो जाए तो दैट विल बी मच इफेक्टिव। तो ये सब चीजें हम कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट लाने के लिए कर सकते हैं, गवर्नमेंट इसमें कोशिश भी कर रही है। तो नीचे हम लोगों ने डिस्कस किया है कि आंसर को कैसे लिखना है। पहली बात को इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकता है। एक तो रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी एंड कंप्लायंस बर्डन है। कंप्लायंस बर्डन जैसे हमने कहा कि 10 जगहों पे आपको जाके इसके लिए परमिशंस लेने पड़ने हैं। आपका रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी ये भी होता है कि पता चले कि हर 3 महीने पे रूल बदल रहा है। जैसे पहले रूल ये है कि एक क्लासरूम है और उसका एरिया अगर 700 स्क्वायर फीट हो तो उसमें 50 लड़कों को बैठाया जा सकता है। 3 महीने बाद उन्होंने चेंज करके बोल दिया कि उसमें 30 लड़कों को बैठाया जा सकता है, स्टूडेंट्स को। तो क्या होगा, जो इंस्टीट्यूट चला रहा है वो तो कंफ्यूज होगा ना कि मतलब 50 को पहले बोला तो सीट उस तरीके से बनवाऊं, फिर 30 के अनुसार, मानी कोई फिक्स सीटें हो तो फिर उसको दिक्कत होगा। पहले अगर उनका हो कि अगर आप 100 लड़कों को बैठा के आप स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो आपको 4 एसी लगवाना है। फिर उन्होंने रूल बना दिया कि नहीं नहीं 100 में आपको 8 लगवाना होगा, तो पूरा मुझे तोड़ना पड़ेगा, पूरा फिटिंग दोबारा मुझे सब कुछ रिनोवेट। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, अनसर्टेनिटी है, रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, वो क्लियर नहीं है कि कितने दिनों बाद वो चेंज करेंगे। तो मुझे भी लगेगा क्या बिजनेस किया जाए, होगा ना जो बिजनेसमैन होगा। तो दिस इज द रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी। ठीक है, फिर यहाँ पे बात आती है कि इंक्रीज करप्शन एंड रेड टैपिज्म, जो मैंने बात किया कि जितना बार आपको वो बुलाएंगे, जितना ज्यादा आपका हर्डल क्रिएट करेंगे, जितनी कमियां गिनाएंगे, आप उतना पैसे दे के आएंगे। तो ये चीज है रेड टैपिज्म का मतलब डिसीजन ही नहीं लेना। जैसे मैं फॉर्म भरा हूँ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए, 1 महीने तक उन्होंने जवाब ही नहीं दिया, तो मैं परेशान होकर जाऊंगा। तो ये क्या होना चाहिए, ये जितनी भी होनी चाहिए ये टाइम बाउंड मैनर में होना चाहिए कि अगर मैं फॉर्म भर रहा हूँ तो क्लियर कट उनको इंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि आपको 10 दिन में जवाब देना है, या तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन करके दीजिए, अगर नहीं हो पा रहा है तो जवाब दीजिए कि क्यों नहीं हो पा रहा है, वो सुधार करें, तो क्लियरिटी होगा। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमें सजेशन में देना है। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन द वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी क्या होगा,
इम्पैक्ट ऑन द वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी, जो लेबर है उसको, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि उसको लगेगा कब मैं जॉब से निकाल दिया जाऊंगा, कब ये इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि अगर जब कंटिन्यूटी होता है तो वर्कर भी खुश होकर काम करता है, उसको लगता है कि मेरा एकदम लाइफ सेटल है, मुझे सिर्फ काम करना है, मुझे अपने स्किलिंग पे ध्यान देना है। ठीक है। दूसरी चीज है कि गवर्नमेंट का कोई अच्छा प्रोग्राम भी नहीं है जिसमें प्रॉपर स्किलिंग कराई जाए। प्रोग्राम तो चला रही है गवर्नमेंट, लेकिन वहां पे मशीन नहीं है, सिर्फ नाम के लिए स्किलिंग कराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं स्किलिंग नहीं है तो आपका प्रोडक्टिविटी अच्छा नहीं होगा। जब आदमी को फंक्शन नहीं आएगा कंप्यूटर चलाने का, स्किल ही नहीं है, तो कैसे जल्दी जल्दी काम करेगा। या कोई भी मशीन चलाना है तो उसमें प्रॉपर तरीके से पहले ट्रेनिंग होनी चाहिए, ट्रेनिंग के बाद वो जब काम करता है, कोई भी सिलाई करना हो तो उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, उसकी स्पेशलाइजेशन ज़्यादा होती है। तो ये सब कमियां हमें अभी भी देखने को मिल रही है। ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कि लैक ऑफ वर्कर्स बेनिफिट, जो वर्कर्स हैं उनका यही नहीं है कि अगर जॉब छूट गया तो उनको पेंशन मिलेगा नहीं मिलेगा। जैसे है कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन प्राइवेट जॉब में ये सब इंश्योर नहीं कर पाते हैं, और प्राइवेट एम्प्लॉयर को लगता है कि इतना पैसे मैं लाऊं कहाँ से। तो ये सब दिक्कतें, काफी चीजें फेस करने को देखी जाती हैं। और इसके कारण जो इन्वेस्टमेंट है, जो बाहर का इन्वेस्टर है वो क्यों इंडिया में करेगा, उसको लगेगा कि यूएस में इससे अच्छा रूल है। अभी हमने देखा कि यूएस में DOGE, डॉज, हमने अब उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया है, दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी, जिसके जो हेड बनाए गए हैं एलन मस्क बनाए गए हैं। एलन मस्क का नाम सुना होगा, जो टेस्ला के हेड हैं। ठीक है। ट्विटर भी उनका है, ट्वीट करते रहते हैं। ठीक है। तो एलन मस्क उसके हेड बनाए गए हैं। तो उनका मेन क्या एम है, डॉज जो डिपार्टमेंट बनाया गया उनका मेन एम है कि जितना कोशिश किया जाए, जितनी भी हर्डल्स हैं, ये कानूनी क्रिया, ये प्रोसीजर है, उसको कम किया जाए। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब वहां पे इतनी अच्छी है, दुबई का हम लोग कल के न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे कि दुबई में इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा है, क्योंकि वहां पे उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है, उस तरीके की पॉलिसी बनाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ऑल दीज आर द क्रिएटिंग हर्डल, इन सभी पे हमको काम करना है। वे फॉरवर्ड में यही सब हम बताएंगे कि जितने भी हैं स्टेक होल्डर, उनसे मिलकर हम डिस्कस करें कि क्या दिक्कत है और उस तरीके से पॉलिसी बनाई जाए। दूसरी चीज है कि स्किलिंग किया जा सकता है, और जो डिजिटल रिफॉर्म है कि जितना ज्यादा हम डिजिटाइजेशन करें, जैसे लैंड डिजिटाइजेशन कर दें, लेबर लॉ को डिजिटाइज कर दें, उतना ज्यादा चीजें इजी होंगी। एंड लास्ट इन्होंने कहा है कि ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए। ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म का मतलब कि मुझे अगर कोई दिक्कत है, किसी इंडस्ट्री को दिक्कत है, तो वो जाके कंप्लेन करे और उस कंप्लेन का रिप्लाई या उस पर जो भी दोषी है, जैसे मानिए कोई ऑफिसर किसी का काम नहीं कर रहा है या कोई इंस्पेक्टर है परेशान कर रहा है, तो मैं जाऊंगा अपना कंप्लेन करूंगा और उस कंप्लेन में जल्दी से जल्दी सुनवाई की जाएगी। नॉर्मली अभी जो है बहुत डिलेड होता है, 2 साल 5 साल 10 साल लग जाता है। टाइम बाउंड मैनर में कार्रवाई की जाए और उसका रिजल्ट आ जाए, तो जो ऑफिसर है उनको भी डर रहेगा कि कुछ भी ऐसा मैं काम करूंगा तो मेरे खिलाफ कंप्लेन होगा और उस पर मेरे खिलाफ पेनाल्टी जाए, मैं सस्पेंड भी हो सकता हूँ। तो यही है कि ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो यहाँ पे दे रहे हैं, शिकायत निवारण तंत्र जो है, उसका मतलब है कि कोई ना कोई मैकेनिज्म टाइम बाउंड में होना चाहिए। अभी है कि आप कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में बहुत टाइम लग जाता है, पैसे भी खर्च होता है, तो बिजनेसमैन को लगता है क्यों कोर्ट में जाए, उससे अच्छा कि घूस घास दे के हम काम चला लें। ऑल दिस यू हैव टू राइट इन दिस आंसर। क्लियर? नाउ वी विल स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ द न्यूज़पेपर। जो आज का न्यूज़पेपर है उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज का न्यूज़पेपर, दीज आर द ऑन द फ्रंट पेज, तो इसको हमने सेग्रीगेट किया है एज द टॉपिक वाइज। जो पहला टॉपिक हमने लिया है जीएस पेपर 1 से, एंड जीएस पेपर 1 में जो फ्रंट पेज पे न्यूज़ है दैट इज द कुथीरा कली। कुथीरा कली यहाँ पे एक डांस फॉर्म है, केरला में पाया जाता है। एंड इसमें हमारे वहाँ पे भी देखिएगा कि घोड़ा पहन के लोग डांस करते हैं। पहले गांव में ऐसा कॉमन था, अभी तो बहुत कम हो गया है। ठीक है। तो उस तरीके का जो केरला में किया जाता है दैट इज नॉन एज द कुथीरा कली। ठीक है। दिस इज द फोक डांस। एंड ये जितनी भी चीजें हैं इसमें क्या होगा कि डांस, और ये डांस जो होगा वो मिथ पे होता है। मिथ मत का मतलब जितने भी हमारे मिथोलॉजी है, पुराण है, उनमें कथाओं पे होगा, उसी अनुसार लोग इसमें श्लोक पढ़ेंगे और डांस करेंगे। कुथीरा का मतलब होता है हॉर्स, एंड कली का मतलब होता है प्ले ऑर्डर डांस। ठीक है। तो कुथीरा कली का मतलब होता है हॉर्स डांस। ठीक है।
यहाँ पे जो परफॉर्मेंस होता है उसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, चेंदा, एलाथलम एंड थकली, ये सब जो बजाने वजाने का इंस्ट्रूमेंट होता है वो सब वहाँ पे जो साउथ में यूज होता है यहाँ पे दिया होता है, ठीक है। पर्टिकुलरली ये किस एरिया में केरला के पाया जाता है, जो साउदर्न एंड सेंट्रल केरला है। अल्लाह पूजा का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, एलिपी, जिसको इंडिया का सबसे अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है, जहाँ पे बैक वाटर बोटिंग होता है, बहुत फेमस है अल्लाह पूजा, ठीक है। कोल्लम भी फेमस है, कोल्लम में आजकल काफी डेवलपमेंट है। एंड कोट्टयम, कोट्टयम फेमस है, वहाँ पे जो एनिमल्स का बहुत बड़ा मार्केट लगता है, तो कोट्टयम इसलिए फेमस है। दीज आर ऑल प्लेसेस इनटू द केरला, यहाँ पे ये सब चीजें। कहाँ पे? कोच्चम, कोल्लम, को, कोट्टयम, ये सब वहाँ के डिस्ट्रिक्ट का नाम है। कोट्टायम, ये जितने भी है, कोल्लम, अल्लाह पूजा, ये सब वहाँ के डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये डांस पाया जाता है। जो ये डांस बात की जा रही है ना, दिस इज द कुर्थीकली, दिस कुर्थीकली हॉर्स डांस जो है वो केरला के 4-5 जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे मेनली पाया जाता है। यहाँ पे उनके नाम दिए हुए हैं। अल्लाह पूजा डिस्ट्रिक्ट का नाम है, जैसे यूपी में गोरखपुर हुआ, कुशीनगर हुआ, देवरिया हुआ। केरला के जो डिस्ट्रिक्ट है कोट्टायम, कोल्लयम, अल्लाह पूजा एंड पथनमथिट्टा, ये साउथ का नाम है, थोड़े से टेढ़े हैं, ठीक है। केरला का और कौन सा फेमस डांस है जो क्लासिकल है, जो नेशनल लेवल पे? कथकली, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम एंड कथकली। हम्म। तो मोहिनी अट्टम में होता है कि काफी ग्रेसफुल डांस होता है, एक सोलो डांस होता है, वहाँ पे व्हाइट साड़ी पहन के डांस करते हैं। कथकली में मास्क लगाते हैं, आपने देखा होगा मास्क, कई बार टीवी पे आता है। हाँ, तो वो सब होता है, वो कथकली है। उसमें जो कॉस्ट्यूम होता है वो काफी इलेबोरेट होता है, लेकिन कथकली सिंपल होता है। इन दोनों को ही हमने रखा है इनटू द क्लासिकल डांस। क्लासिकल जो डांस इंडिया के हैं उसमें दोनों आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, एज द सोल आर्टिजन विंस अप हिज क्राफ्ट, इट्स टाइम फॉर द लास्ट हैट टिप टू ए फेम्ड कैप। तो यहाँ पे है कि खासकर एक तरीके की टोपी है, दिस इज द थालंगारा थोपी। साउथ में टोपी को तो को थ बोलते हैं, तो वहां पे टोपी को थोपी बोला जाता है, थलंगारा टोपी, ठीक है। ये बहुत ट्रेडिशनल था, बहुत पहले से ही यूज हो रहा था। यहाँ तक माना जाता है कि इब्न बतूता जब आए थे, इब्न बतूता मोरक्को के ट्रेवलर थे और सल्तनत पीरियड में आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। तो उस समय उन्होंने मेंशन किया है कि इस तरीके का टोपी यूज होता है। आजकल ये टोपी आप देखने को मिलेंगे, जब रमजान का महीना है तो ये टोपी लोग लगाते हैं, काफी ये उसमें कढ़ाई होती है, इलेबोरेट तरीके से इसको बनाने का एक तरीका होता है, ठीक है। इसमें काफी टाइम लगता है बनाने में। तो आप देखिएगा कि ये टोपी का चलन धीरे धीरे कम हो रहा है, लोग कम पहन रहे हैं, और इसीलिए जो इंडस्ट्री है, जो बिजनेसमैन है, वो भी अब प्रोडक्शन कम कर रहे हैं। जब डिमांड नहीं रहेगा तो लोग क्यों बनाएंगे? और इसमें काफी मेहनत लगता है, गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी भी नहीं लगता है, क्यों? पूरा बनाने में इसका नियर अबाउट, एक टोपी बनाने में जिस तरीके से प्रोसेस है 20 दिन का टाइम लग जाता है, तो ना ही कोई इतना पैसा देगा। आजकल तो मशीन से बनाए टोपी आ रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं, तो इसका चलन बंद हो रहा है। तो वही कह रहे हैं कि इतना पुराना ट्रेडिशन, इब्न बतूता तक ने इसको मेंशन किया था। इब्न बतूता बहुत ही फेमस ट्रेवलर है, उन्होंने एक बुक लिखा था, रिहाला, रिहाला जिसका मतलब हुआ ट्रेवलर, ठीक है, ठीक है। तो रिहाला उन्होंने लिखा था, 14 सेंचुरी का राइटर है ये, इब्न बतूता यहाँ पे दिया है। मोरक्को के थे, इसलिए मोरक्कन इनको कहा जाता है, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में थे, ये जज थे उस समय, मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको जज बना दिया था। तो इनके भी राइटिंग में ये मेंशन है। तो नीचे हमने इब्न बतूता का दिया हुआ है कि उनका जो बुक है दैट इज द रिहाला ट्रेवल्स, ठीक है। और वो किसके कोर्ट में आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक, 1333 ईस्वी में, और उनका उन्होंने जज, काजी बना दिया था, ठीक है। तो ये सब चीजें आप याद रखिएगा, ये पूछ सकता है कई बार। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो आज कवर किया गया है, साइंस एंड टेक वाले पेज पे है कि ग्लोबल कोऑर्डिनेशन कैन ट्रम्प एफर्ट्स टू अंडरकट क्लाइमेट प्रिडिक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे है कि ग्लोबल कोऑर्डिनेशन कैन ट्रम्प एफर्ट, जैसे अगर क्लाइमेट प्रिडिक्शन करना है, व्हाट इज द क्लाइमेट?
क्लाइमेट किसे कहते हैं? किसे कहते हैं क्लाइमेट? मौसम, मौसम वेदर होता है। वेदर लोकल होता है कि आज का बारिश वाला वेदर है, ठीक है। क्लाइमेट पूरे ग्लोबल लेवल पे होता है कि आजकल पूरे ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ गया, पूरे ग्लोब में एक बारिश का जो लेवल है वो बढ़ गया, पूरे ग्लोब पे सी लेवल का राइज हो रहा है, सी लेवल राइज जो कहते हैं, ठीक है। तो ये सब क्लाइमेट होता है। क्लाइमेट कहीं ना कहीं वेदर को ही इकट्ठा कर दे तो क्लाइमेट हो जाएगा। जैसे वेदर है लोकलाइज फिनोमेना है कि यूपी का वेदर हो गया, गोरखपुर का वेदर हो गया, आप जाएंगे थोड़ी भी दूरी पे तो वेदर चेंज होने लगता है, कहा जाता है। तो वेदर लोकलाइज फिनोमेना है, क्लाइमेट जो है वो बड़ा फिनोमेना है, पूरे नेशनल लेवल पे आएगा, इंटरनेशनल लेवल पे आएगा। तो अगर आपको वेदर का सही प्रिडिक्शन करना है तो आपको कहीं ना कहीं जगह जगह अलग अलग देशों में कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। अलग अलग देशों का जब होगा तभी तो इकट्ठा होकर क्लाइमेट का एक प्रिडिक्शन होगा कि पूरे दुनिया का जो क्लाइमेट है वो कितना चेंज होगा 10 साल, 50 साल, 100 साल बाद। तो ये सब हमें कहाँ से देखने को मिलता है? कोई एक बॉडी होना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे जो इस सब चीजों को कोऑर्डिनेट करे। तो अभी जो इंटरनेशनल लेवल पे बॉडी था वो यूएस का एक डिपार्टमेंट है, दैट इज द नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है उसके अंडर में काम करता था और अभी भी करता है। लेकिन ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि ट्रंप जब से आए हैं वो क्लाइमेट चेंज का विरोध करते हैं, और क्लाइमेट चेंज का विरोध करने के चक्कर में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लोगों का भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्लाइमेट के बारे में रिपोर्ट देता था और ये प्रूव करने के चक्कर में लगा रहता था कि हाँ क्लाइमेट चेंज हो रहा है, रियल है। लेकिन ट्रम्प को ये प्रूव करना है कि कोई क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है, ये झूठा चीज है, फालतू का चीज लोग फैला रहे हैं। तो इसीलिए इन्होंने इसके जो एम्प्लॉय हैं उसके नंबर कम कर दिए हैं ताकि कम से कम काम करें। लेकिन अब ये वेदर प्रिडिक्शन करता था, ये साइंटिफिक रिसर्च करते थे, ये वेदर का प्रिडिक्शन करते थे, ग्लोबल लेवल पे करते थे, तो इंडिया को भी फायदा होता था क्योंकि इंडिया में भी वो रिपोर्ट आएगा कि कब किस एरिया में बारिश होने वाली है, किस एरिया का समंदर का लेवल बढ़ेगा, ये सब चीजें फायदा होती थी। लेकिन अब बंद होने से यह है कि कहीं ना कहीं इसको इम्पैक्ट होगा, जो हमें भी इम्पैक्ट करेगा, हमें भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा तो हम भी कैसे प्रॉपर तरीके से अपने किसानों को बता पाएंगे कि इस बार जुलाई में बारिश कम आने वाली है, ठीक है, तो आप इस तरीके से फसल लगाइएगा, इस एरिया में सूखा पड़ने वाला है, पहले से रिपोर्ट होता है तभी हम प्रिडिक्शन कर पाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजों के कारण ये न्यूज में है। और एक और ग्लोबल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन है जो ये प्रिडिक्ट करता है, दैट इज द IPCC, that is the Intergovernmental Panel on the Climate Change. Intergovernmental Panel on the Climate Change again पूरे दुनिया का जितने भी रिसर्च होते हैं उनके रिपोर्ट को एक जगह इकट्ठा करता था, एसेस करता था और कंट्री वाइज रिपोर्ट देता था कि इस कंट्रीज का क्या परफॉर्मेंस है। जैसे अभी हम लोग ये भी पूरे दुनिया पे कोशिश कर रहे हैं कि पूरे दुनिया में हम कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिट होता है उसको कम किया जाए, और हर एक कंट्री को हमने टारगेट दे के रखा है कि आप इतना कम करेंगे, आप इतना कम करेंगे। आईपीसीसी जो है उसी पे रिपोर्ट बनाता है कि कौन कंट्री कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए क्या कर रहा है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है? जहां जहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं उसको कम किया जाए। कार्बन डाइऑक्साइड कहां कहां से निकलता है? जो हमारी गाड़ियां चलती हैं धुआं निकलता है, बाइक के बस के पीछे से निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। जहाँ कारखाने होते हैं वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, जहाँ से चिमनी होता है। हम्म हम्म तो हम्म ठीक है। और फैक्ट्री पे काम रोक लगा दिया जाएगा, फिर लोग जॉब कैसे करेंगे? अगर गाड़ियों पे रोक लगा दिया जाए तो लोग पैसे। वेरी गुड। हमें कोशिश करना है कि पोल्यूशन कम किया जाए। फैक्ट्री तो रहेगी, गाड़ियां भी चलेंगी क्योंकि कम्युनिकेशन भी जरूरी है, ट्रांसपोर्टेशन भी जरूरी है। तो एक तो मशीन लगा दे, मशीन लगाने के सिवा एक और उपाय ये कर सकते हैं कि जो मशीन है उसको ही बदल लें। जैसे हम चला रहे हैं उसमें क्रूड ऑयल लगा रहे हैं, पेट्रोल डीजल से चला रहे हैं, क्यों ना उसको बदल के इलेक्ट्रिक व्हीकल कर दे कि चार्ज हो, सीएनजी है, ठीक है, तो उसका यूज करें, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। दूसरा है कि जो कोल हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कोल से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं कोयला जला के,
उससे अच्छा हम क्या करें, सोलर पैनल से प्रोड्यूस करें, विंड एनर्जी से प्रोड्यूस करें, तो कोल ना जलेगा ना धुआं निकलेगा, सन से एनर्जी आएगा, उसका यूज करके हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आईपीसीसी ये रिपोर्ट देता था, और इंडिया कितना कम काम कर रहा है, सही में अपने देश में बढ़ावा दे रहा है कि नहीं, ये सब रिपोर्ट यहीं से आता था। और ये जो रिपोर्ट आता है दैट इज अंडर द जो ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO। तो आपको ये याद रखना है कि ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों है, ये दोनों यूनाइटेड नेशन के अंडर में काम करते हैं। यूनाइटेड नेशन पूरे ग्लोबल लेवल पे काम करता है, तो ग्लोबल लेवल पे काम करता है तो वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करता है। तो आपको याद रखना है कि WMO इंडिपेंडेंट कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ना ही एनजीओ है। कई बार ऐसा क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि जो WMO है दैट इज द इंडिपेंडेंट एनजीओ, लेकिन ये यूएन का पार्ट है। याद रखना है, अगर कभी पूछता है तो यूएन का ये स्पेशलाइज्ड बॉडी है जो ग्लोबल लेवल पे क्या टेम्परेचर रहेगा एटमॉस्फेयर का, सी का, ओशियंस का, ये सब का रिपोर्ट ये देते हैं। और ये रिपोर्ट जो देने का तरीका है वो आईपीसीसी के हेल्प से देते हैं। ठीक है, आईपीसीसी को जो बनाया गया था वो WMO के द्वारा बनाया गया था। क्लियर हो रहा है? काम सबका एक ही है, सभी किस पे काम कर रहे हैं, रिसर्च ऑन द ग्लोबल जो हमारे डेटा है, खासकर जो टेम्परेचर है, वेदर कंडीशन है, क्लाइमेट है, ये सब पे डेटा ये लोग देते हैं। इसीलिए ये आज न्यूज में था। ऊपर यहाँ पे दिया गया है WMO, जैसे आईपीसीसी के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। दिस प्रोवाइड द कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑन द क्लाइमेट चेंज, इट्स इम्पैक्ट एंड पोटेंशियल फ्यूचर रिस्क, की आने वाले टाइम में रिस्क किस तरीके का होगा, एंड किस तरीके से हम चीज़ों को एडाप्ट एंड मिटिगेट कर सकते हैं। एडाप्ट का मतलब अपने आप को उस तरीके से ढालना, मिटिगेट का मतलब चीज़ों को उसकी इंटेंसिटी कम करना है। मिटिगेशन में जैसे हमने बताया कि कोल एनर्जी को रिप्लेस कर देंगे सोलर एनर्जी से, तो मिटिगेशन ही है। मिटिगेशन का मतलब होता है चीज़ों को कम किया जाए, और एडाप्टेशन का मतलब अपने आप को उस तरीके से ढालना। जैसे होता है ना कि हम गर्मी में रहना सीख जाए, हम उस तरीके का फसल उगाएं जो ज्यादा टेम्परेचर पे होता है, तो वो सब होता है एडेप्टेशन। आईपीसीसी हर 6-7 साल पे अपना रिपोर्ट देता है। अभी जो लास्ट इन्होंने रिपोर्ट दिया है 2023 में दिया है, दैट इज द 6th असेसमेंट रिपोर्ट। 6th असेसमेंट रिपोर्ट जो आया है वो 2023 में आया है। तो पूछ सकता है कि आईपीसीसी ने जो लेटेस्ट रिपोर्ट दिया है वो कौन सा रिपोर्ट था, 5वां, 6ठा, 7वां या 8वां? तो द करेक्ट आंसर विल बी 6th। ठीक है, अभी जो COP29 ग्लोबल लेवल पे किस तरीके से टेम्परेचर कम किया जाए, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से हम CO2 एंड डिफरेंट पोल्यूटिंग गैस हैं जो ग्लोबल वार्मिंग गैस है उसको कम करें, उसके लिए हमेशा कॉन्फ्रेंस होता है। और जो रिसेंट कॉन्फ्रेंस हुआ है पिछले साल 2024 में हुआ है, और हर टाइम ये बदल बदल के देशों में होता है। तो पिछले साल जो हुआ है उस देश का नाम है अजरबैजान, और अजरबैजान का जो कैपिटल है बाकू, बाकू में हुआ है। तो इसको बाकू अजरबैजान में है, एंड जो कॉन्फ्रेंस है वो 29th कॉन्फ्रेंस है। इस कॉन्फ्रेंस में पूरे दुनिया के जो पॉलिटिकल जो लीडर हैं वो आते हैं, जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो आते हैं, मिलकर डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम लोग एक स्ट्रेटजी बनाएं कि पूरे ग्लोबल लेवल का जो टेम्परेचर है उसको कम किया जा सके। क्लियर? सो दिस इज फ्रॉम GS पेपर 1। GS पेपर 2 में जो टॉपिक है उसको एक एक करके हम देखते हैं। पहला जो टॉपिक है, इन मॉरिशस मोदी कॉल्स फॉर द फ्री सिक्योर इंडियन ओशियन। तो मोदी जी अभी 2 दिन की ट्रिप पे हैं, मॉरिशस में है। मॉरिशस कहाँ पे है? मॉरिशस मेडागास्कर के पास है। एक मिनट, मैं इसको मैप में दिखा देता हूँ। मॉरिशस का जो लोकेशन है मेडागास्कर के पास है। ये मॉरिशस दिख रहा है, दिस इज जस्ट
अफ्रीका है, अफ्रीका के बाद मेडागास्कर है, मेडागास्कर के बाद मॉरिशस है। मॉरिशस बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट लोकेशन है क्योंकि इंडियन ओशियन में है, कभी भी अटैक होगा किसी भी देश से तो अगर आप आइलैंड पे हैं तो आपका एडवांटेजियस पोजीशन है, वहां से आप शिप हो, सबमरीन हो, ये सब लेके जाना इजी होता है। तो इसीलिए ये इतना इंपॉर्टेंट पोजीशन है कि डियोगो गार्सिया इसी का पार्ट है, छोटे छोटे आइलैंड है चारों तरफ समंदर में फैले हुए हैं। तो डियो गार्सिया पे जो है वो कैप्चर यूके ने किया हुआ है, अभी भी लड़ाई होती है। जैसे यूके के ये कॉलोनी थे, कॉलोनी का मतलब जैसे इंडिया उसका कॉलोनी था ना, वैसे मॉरिशस भी था और मॉरिशस का ये पार्ट था डियो गार्सिया। लेकिन यूके ने इनको आजाद कर दिया, लेकिन इसको अभी भी कैप्चर करके रखा हुआ है। यहाँ की जितनी भी आबादी थी, ज्यादा लोग नहीं थे, कुछ हजार थे, इनको शिफ्ट कर दिया या तो मॉरिशस में या तो सेसली में। सेसली भी आइलैंड ग्रुप है, ये भी अलग देश है, ठीक है। तो अभी भी लड़ाई ये चल रहा है कि मॉरिशस अपना क्लेम डियागो गार्सिया पे करता है कि ये हमारा है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे ये मॉरिशस ने अपना केस किया था और जीत भी गया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोला है कि जो दिस पार्ट डियोगो गार्सिया दैट विल बी पार्ट ऑफ मॉरिशस, ठीक है। यूके इतना होशियार है कि इसी का एक एरिया है डियागो, उसको लीज पे दिया है यूएस को। यूएस ने वहां पे अपना मिलिट्री बेस बना के रखा है, तो उसको भी लेके लड़ाई है कि किस तरीके से, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे, खासकर अगर चाइना से भी युद्ध होता है तो यहाँ से युद्ध करके यहाँ से शिप लेके अटैक करना इजी रहेगा, पास होंगे ना आप। तो इसीलिए ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट पे है, तो इसको लेके काफी डिबेट चल रहा है, ठीक है। इसको चैगोस आर्किपेलागो कहते हैं। आर्किपेलागो का मतलब होता है छोटे छोटे आइलैंड का ग्रुप। आइलैंड क्या होगा, समंदर में थोड़ा सा जमीन निकला होगा, वहां पे लोग होंगे, पूरा चारों तरफ समंदर होता है, वही होता है द्वीप। क्या कहते हैं इसको, आइलैंड को, आइलैंड को हिंदी में क्या कहते हैं? कोई द्वीप कहते हैं ना, द्वीप बोलते हैं ना, कुछ ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज द, अगर कई आइलैंड हो तो उसके समूह को हम क्या कहते हैं, आर्किपेलागो कहते हैं, ठीक है। और चैगोस ओ पूरे एरिया को बोलते हैं। अब यहाँ पे जो दे के रखा है लीज पे, दैट एरिया यहाँ पे दिया हुआ है। डियागो गार्सिया है वो, उस पे यूनाइटेड स्टेट ने अपना बेस बना के रखा है। हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे ना कि यूके इतना होशियार है कि लीज पे दिया है। लीज पे मतलब कि किराए पे, जैसे रेंट पे देना होता है ना, तो वो दिया है यूएस को। और यूएस उस पे अपना मिलिट्री बेस बना के रखा है कि जब भी युद्ध होगा, मिलिट्री बेस में क्या होता है, मिलिट्री बेस का मतलब जितने भी मिलिट्री के चीजें होंगे कि वहां पे अपना पूरा टैंक, अपना जैसे ये बोल रहे हैं कि एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उनका पूरा टैंक, उनका वारशिप, सबमरीन सब वहां पे रखते हैं कि अटैक करना हो तो वो एकदम रेडी हैं। नेक्स्ट न्यूज है, यूएस स्ट्राइक बैक विद द टैरिफ, ईयू स्ट्राइक बैक विद द टैरिफ ऑन द यूएस इंपोर्ट्स। तो यहाँ पे है कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि टैरिफ वॉर चल रहा है। टैरिफ का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय द टैरिफ? टैरिफ का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे है ईयू ने अमेरिका आयात पर शुल्क लगाकर जवाब दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, शुल्क, ठीक है। सही मायने में जो टैरिफ होता है वो होता है टैक्स होता है। टैक्स का मतलब होता है कि जब आप किसी दूसरे देश से कुछ चीज खरीद के ला रहे हैं और इंडिया में जब एंट्री करेंगे तो वहां पे टैक्स लगेगा, दैट इज नोन एज द ड्यूटीज, टैरिफ, ठीक है। तो टैरिफ इसलिए लगाया जाता है कि दूसरे देश से अगर सस्ता सामान आ रहा हो तो आपके देश का सामान कौन खरीदेगा, फिर आपका फैक्ट्री नहीं चल पाएगा, जो फैक्ट्री में लोग हैं उनको बेरोजगारी मिलेगी। तो टैरिफ थोड़ा थोड़ा जहाँ पे जिस देश को लगता है कि इस देश से बहुत सस्ता सामान आ रहा है, हमारे देश के जो इंडस्ट्री है वो उनसे कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो ऐसे में क्या करता है वो देश, टैरिफ बढ़ा देता है। टैरिफ का लेकिन घाटा ये होगा कि जो कंज्यूमर है उसको चीजें महंगा मिलेंगी। जैसे अगर एक तो इंडस्ट्री है उसी देश का तो उसको घाटा हो रहा है, लेकिन कंज्यूमर को तो फायदा हो रहा है, बाहर से आ रहा है, सस्ता मिल रहा है, क्वालिटी में भी है। अब आपके ही देश के लोगों से जो
इंडस्ट्रीज हैं उनको बता दिया जाए कि बाहर से कोई प्रोडक्ट नहीं आएगा, तो वो क्या करेंगे, सामान भी अच्छा नहीं बनाएंगे क्योंकि उनको पता है मेरा ही सामान खरीदना पड़ेगा मजबूरी में, ठीक है। तो लोगों को प्रोडक्ट अच्छा नहीं मिलेगा। दूसरी चीज है कि महंगा मिलेगा, उनको लगेगा कि बाहर से कोई आ नहीं रहा है, मैं जितना दाम बढ़ाऊं। तो देखिए घाटा भी है टैरिफ ज्यादा करने का, फायदा भी है। घाटा ये है कि वहां की इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो जाती है, इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं वो देश के ही लोग हैं ना जो जॉब कर रहे हैं। लेकिन अगर आप टैरिफ बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, जो बाहर से प्रोडक्ट आ रहा है वो महंगा हो जाएगा और लोगों के पास ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि बाहर वाला जब टैरिफ जाएगा तो आएगा नहीं उस देश में, तो मनमानी करने लगते हैं वहां की इंडस्ट्री। तो इसीलिए कोशिश ये किया जाता है कि टैरिफ भी कम रहे और कहीं ना कहीं इस तरीके से ना माहौल बने कि इंडस्ट्री भी खराब हो जाए। दोनों चीजों को बैलेंस किया जाता है। इसीलिए कोशिश होती है कि इंडस्ट्री को हम लोग सपोर्ट करके टेक्नोलॉजी देके उनका सामान सस्ता करवा दें और उनका प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छा करवा दें। उससे अच्छा कि बाहरियों को हम मना कर दें, तो लोगों को ये फायदा होगा, लोगों के पास 10 ऑप्शन होगा कि अमेरिका से आ रहा है वो भी खरीद ले। जैसे होगा ना, पहले अगर केवल एक ऑप्शन होता था तो हमारे पास सिर्फ एक बाइक हुआ करता था राजदूत, ठीक है, और एक कार हुआ करता था एम्बेसडर। लेकिन जब हमने थोड़ा सा बाहर से लोगों को आके बेचने का अधिकार दिया तो हमारे पास बहुत तरीके की कार है, बहुत तरीके की बाइक्स हैं, बहुत तरीके की गाड़ियां हैं। तो कहीं ना कहीं सस्ता भी हुआ। पहले काफी टाइम लगता था, आपको कार खरीदना हो तो जाके रजिस्टर करवाना पड़ता था, 4-6 महीने बाद आपका बन के आता था। आप अपने चाचा दादा लोगों से पूछेगा, पहले का प्रोसेस बहुत टफ था। उन लोगों को अगर बिजली का कनेक्शन लेना हो, या छोड़िए नॉर्मल टेलीफोन का कनेक्शन लेना होता था बीएसएनएल का, तो बहुत दौड़ भाग करने के बाद कनेक्शन मिलता था। तो वो सब चीजें क्यों हमें इजी हो गई, क्योंकि हमने बाहर से एयरटेल को बोल दिया, हमने और भी कंपनीज को बोला कि आप आके लगाइए, तो कंपटीशन होने लगता है। तो चीजें क्या होती हैं, कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट अच्छा मिलेगा और सस्ता मिलेगा। तो ये सब चीजें फायदा है। अब यूएस एंड ईयू एक दूसरे से टैरिफ वार में लड़ रहे हैं, वो उसके प्रोडक्ट को पे टैरिफ हाई कर दे रहे हैं और ईयू उनके प्रोडक्ट पे हाई कर रहा है। तो इससे अल्टीमेट घाटा किसको होगा, जो वहां की जनता है, दोनों देशों की जनता को होगा ना। जब टैक्स बढ़ेगा तो ओवरऑल पैसे बढ़ेंगे और जो खरीदने में महंगा पड़ेगा। तो दिस इज द मेन थिंग। नेक्स्ट न्यूज है रिजॉल्विंग द वैक्सियस फिशिंग डिस्प्यूट। यहाँ पे जो पूरा एनालिसिस किया गया है वो है कि तमिलनाडु में और श्रीलंका में, दोनों आस ही पास है, मैप में एक बार दिखा देता हूं। ये श्रीलंका है और ये वाला एरिया तमिलनाडु है। इंडिया का ये वाला एरिया तमिलनाडु है और ये श्रीलंका है। अब ये समंदर है, समंदर में मछलियां हैं, यहाँ के कोस्टल जो लोग हैं वो मछलियां पकड़ेंगे। तो मानिए मछली सभी नॉर्मल वो तार वाला है उससे फंसा रहे हैं तो इजी होगा, किसी में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मानिए किसी के पास नेट आ गया, नेट फेंक के एक ही जगह सब लोग बैठे हैं, अगर सब लोग तार वाले से कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, सबको जिससे जो फंसा ले सबके पास बराबर है। लेकिन सोचिए एक बार के पास पूरा नेट आया, वो फेंक के आ रहा है और आप तार लेके कर रहे हैं, तो क्या होगा, नेट वाला ज्यादा फंसा के लेके जाएगा ना, आपको लगेगा अरे मछली ही नहीं मिल रहा है, सब तो ये मार के ले जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अब यहाँ पे लड़ाई इसी बात का, श्रीलंका वाले इंडिया वाले पे क्लेम करते हैं कि इंडिया वाले जो फिशरमैन है वो अमीर हैं और उनके पास टेक्नोलॉजी हाई है, तो इस एरिया के सारे फिश ये पकड़ के ले जाते हैं। यहाँ के जो है उनके पास टेक्नोलॉजी कम है और इसीलिए यहाँ के जो फिशरमैन है उनके पास लाइवलीहुड का इशू आ रहा है, वो अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका मेन जो लाइवलीहुड जीने का तरीका है वो टोटली फिशिंग पे आधारित है, कि वो फिश मारते हैं, वही खाते हैं, वही बेचते हैं, उसी पे उनका पूरा जीवन चर्या चलता है, ठीक है। तो इसी बात पे इंडिया और श्रीलंका में बहुत ही डिबेट रहता है, कॉन्फ्लिक्ट रहता है। और इस चक्कर में क्या होता है कि कोई फिशरमैन, अब यहाँ पे मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा था, लेकिन यहाँ पे जो फिशिंग होती है वो वोट से होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये इंडिया वाले फिशरमैन कई बार इनके एरिया में भी जाके फिशिंग करने लगते हैं, तो वो इलीगल है कि आप बॉर्डर अपने बॉर्डर में कीजिए ना, जो मेरे एरिया में क्यों आ रहे हैं। तो ये भी यहाँ के जो फिशरमैन है वो शिकायत करते हैं, ठीक है। खासकर एक और मुद्दा है जो मशीन मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पे टेक्नोलॉजी हाई है, वो है ट्रॉलर के कारण। एक बोट ट्रॉलर होता है जहाँ पे काफी ज्यादा फिशिंग करने की कैपेसिटी होता है, वो पूरे जमीन से ही लेके, जैसे वो नेट होगा और जमीन से लेके जाएगा और पूरा का पूरा मछली पकड़ के ले जाएगा। तो ऐसे में सिर्फ फिशिंग का ही इश्यू नहीं आ रहा है, इन्वायरमेंट भी डिस्ट्रॉय हो रहा है। जैसे आप नॉर्मल फिश केवल पकड़ते हैं तो
बाकी चीजें जो जीव जंतु है वो बच जाते हैं। उसमें और भी जीव जंतु रहती हैं, ठीक है, कोरल्स रहते हैं, जिस कोरल्स के डिफरेंट प्रजातियां होती हैं, और भी जो इतनी भी प्रजातियां हैं, जो मानिए छोटी छोटी मछलियां हैं, उनको तो आप ग्रो होने देंगे ना। जब आप एक साथ सब निकाल के ले जाते हैं तो छोटी मछलियों को भी पकड़ के ले जाते हैं। तो हाँ, तो इसीलिए वहां पे सस्टेनेबल नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए वो फायदे में नहीं है। तो इसीलिए श्रीलंका इसका विरोध कर रहा है। ओवरऑल यही यहाँ पे दिया है कि इंडिया एंड तमिल गवर्नमेंट टू टेक डिसीजिव एक्शन अगेंस्ट इलीगल फिशिंग इन द श्रीलंका वाटर। जो श्रीलंका का वाटर है, खासकर हम ट्रॉलर ले जाके वहाँ के फिशर्स को, हमारी जो फिशर कम्युनिटी है वो पूरा का पूरा एक्सप्लॉइट कर रही है। वहाँ की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, मुद्दा है, जैसे हमारे वहाँ इलेक्शन में कोई मुद्दा हम लोग बना लेते हैं पाकिस्तान को लेके, चाइना को लेके, वैसे श्रीलंका का जब भी इलेक्शन होता है तो ये वाला मुद्दा रहता है कि इंडिया के जो फिशरमैन हैं वो आके हमारे एरिया में फिश मार के जा रहे हैं और हमारे लोगों को सही से, तो हर एक पार्टी कहती है कि मैं आऊँगा तो इंडिया गवर्नमेंट के साथ ये रिश्ता मतलब तोड़ लूंगा अगर वो तैयार ना हुए। तो इसी पे पूरा उनकी पॉलिटिक्स चलती है। तो वो इश्यू यहाँ पे बना हुआ है। एक चीज और याद रखिएगा, पाक वे इंडिया एंड श्रीलंका के बीच का एरिया है। दिस इज द, ये वाला जो एरिया है दैट इज द गल्फ ऑफ मन्नार, और ये है जो है पाक वे है। एक बार मैं दिखा दूं आपको इंडिया वाले मैप में। देखिए ये वाला जो एरिया है पाक स्ट्रेट एंड पाक वे, एंड ये वाला जो एरिया है गल्फ ऑफ मन्नार है, ठीक है। तो जो मेन लड़ाई जो चल रही है इसी पाक स्ट्रेट एंड पाक वे में चल रहा है, ये सब एरिया जहाँ पे है। तो अगर कभी प्रीलिम से पूछता है कि पाक वे किस जगह पे है, तो यू शुड बी क्लियर, PAL के पाक वे एंड पाक स्ट्रेट है, और नीचे गल्फ ऑफ मन्नार। ये साफ से दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर आप अपने मैप में देखेंगे तो ये गल्फ ऑफ मन्नार दिखेगा। ज्योग्राफी में कई बार पूछता है यूपीएससी। बॉटम ट्रॉलिंग कहते हैं, जो मशीन का यूज होता है बॉटम ट्रॉलिंग, जिस तरीके से फिशिंग का ये लोग बोट का यूज करते हैं। अब इसका सोल्यूशन ये भी बोला जा रहा है कि आप जो फिशिंग कर रहे हैं वो आप, दिक्कत इसलिए आ रही है कि क्योंकि आप इस एरिया में कर रहे हैं, इस एरिया में कर रहे हैं तभी तो दिक्कत आ रही है। और इस एरिया में छिछला होता है, जस्ट कोस्ट के पास नदी के भी किनारे जो होता है वो उतना गहरा नहीं होता है। हाँ, वहाँ पे जो वाटर का लेवल होता है बहुत कम होता है, तो वहाँ पे इजीली आप दोहन कर सकते हैं मछलियों का। लेकिन जहाँ पे पूरा समंदर का डीप सी है, ये वाला एरिया, ये भी तो पूरा इंडियन ओशियन एंड बे ऑफ बंगाल पूरा फैला है, यहाँ पे मछलियों की भी संख्या ज्यादा होगी, तो आप यहाँ जाके कीजिए ना। तो इसको प्रमोट करने के लिए अब यहाँ पे क्यों नहीं जाएंगे? फिशरमैन को लगेगा कि इतना दूर तेल जला के वहां जाऊं, पास में ही करूं, तेल बचेगा, ये रिस्की भी है, डीप सी में करने के लिए आपको ज्यादा बड़े बड़े और भी मशीन की जरूरत होगी। तो ये सब चीजों के कारण फिशरमैन नहीं जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट चाहते हैं कि आप वहां जाइए ताकि सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। आप पूरा का पूरा मछली निकाल के लेके जाएंगे तो फिर आगे वाले टाइम में मछुआरे कैसे फिश करेंगे? आपको खुद दिक्कत होगा। जैसे अगर आपने मुर्गी है, एक एक अंडा अगर आप लेके खा रहे हैं तो सही है, पूरे मुर्गी को ही मार दे तो फिर आने वाला कैसे, जो उनका चिकन है वो कैसे पैदा होगा? जो चूजा है वो नहीं पैदा होगा ना, फिर अंडा कैसे पैदा होगा? तो वही कहा जा रहा है कि पूरा का पूरा मछली मारने से अच्छा आप डीप सी में जाके मारें। और यहाँ वाली मछलियाँ वैसे भी सैलो है तो कम है, डीप सी में ज्यादा है। तो इसी के लिए तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने मरीन फिशिंग रेगुलेशन एक्ट बनाया था 1983 में, और इसके थ्रू इन्होंने कहा था फिशिंग एक्टिविटी एलॉन्ग द तमिलनाडु जो कोस्ट है वो रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। उसके आप बहुत ही कम मात्रा में करेंगे, मैक्सिमम जो आप फिशिंग करेंगे वो आप डीप सी में जाके करेंगे। जो गहरा वाला एरिया है उसको डीप सी कहते हैं। तो यहाँ पे डीप सी फिशिंग, ये है ना, डीप सी फिशिंग स्कीम हमने स्टार्ट किया था। गवर्नमेंट अभी इंडिया की जो यूनियन गवर्नमेंट है वो भी प्रमोट कर रही है। उन्होंने 16,000 करोड़ रुपए दिया हुआ है पाक वे डीप फिशिंग को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि डीप फिशिंग करने के लिए आपको मछुआरों को उस तरीके से व्यवस्था देना पड़ेगा,
फिर आप उसके अंदर भी पोर्ट की व्यवस्था करनी पड़ेगी, हार्बर बनाने पड़ेंगे। तो इसके लिए ऑलरेडी हमारे पास पाक वे डीप फिशिंग स्कीम है, उसमें 16,000 करोड़ रुपए 1600 करोड़ रुपए दिया गया है। उसके साथ साथ यूनियन गवर्नमेंट प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी चला रही है। इसके अंडर में जितने भी कोस्टल एरिया है उसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं। कोस्टल एरिया का मतलब पूरा का पूरा आप गुजरात से लेके आप उड़ीसा तक चले जाएंगे, वेस्ट बंगाल तक चले जाएंगे, तो ये सब एरिया कोस्टल एरिया होगा और उसको हमको डेवलप करना है और मेनली हम वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। क्लियर हो रही है ये चीजें? व्हाट इज द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना? नेक्स्ट न्यूज है, विल मस्क बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द रॉयल सोसाइटी। रॉयल सोसाइटी का नाम सुना है कभी? नाम सुना है? रॉयल सोसाइटी जो यूके है, ब्रिटेन है, वहाँ का जो जितने भी बड़े साइंटिस्ट होते हैं दुनिया लेवल पे, उनका एक ग्रुपिंग है। उस सोसाइटी में उन्हीं को एंट्री दिया जाता है जो बहुत बड़ा नाम हो साइंटिफिक एरिया में, कुछ रिसर्च किया हो या कुछ उन्होंने साइंस की दिशा में कुछ नए तरीके का इन्वेंशन किया हो, उनको उसमें दिया जाता है। तो बहुत बड़े बड़े जो साइंटिस्ट होते हैं वो हमेशा से मेंबर है और बहुत पुराना है, नियर अबाउट 400 साल पुराना है। 365 ईयर ओल्ड ये सोसाइटी है ब्रिटेन में, ठीक है। अब इसमें जो भी नाम आ जाता है उसको माना जाता है कि बहुत महान टाइप के लोग हैं, ठीक है। इसके जो मेंबर रहे हैं, न्यूटन रहे हैं, ठीक है। जितनी भी बड़ी नामें दी हुई हैं यहाँ पे देखिएगा कि चार्ल्स डार्विन है, अल्बर्ट आइंस्टीन है, स्टीफन हॉकिंस है, आइंस्टीन सबका नाम सुना है। वो जितने भी लोग हैं वो सब लोग इसके मेंबर रहे हैं। तो इसके मेंबर अभी एलन मस्क को भी बना दिया गया है। ये एलन मस्क है, अभी इनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। एलन मस्क जो टेस्ला के मालिक हैं, जो ट्विटर के हैं, आजकल काफी न्यूज में है क्योंकि उन्होंने ट्रंप को भी सपोर्ट किया था इलेक्शन में और ट्रंप ने उनको अपना एक डिपार्टमेंट बनाया है, डॉज, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशिएंसी, उसका उन्होंने हेड बना दिया है। इसीलिए ये न्यूज में है। अब इनका बात हो रहा है कि इनको निकाल दिया जाए क्या, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जो साइंटिफिक जिस तरीके से चीज है उसके खिलाफ बोल रहे हैं। जैसे मेनली वो ट्रंप जो नहीं होता कि राइट विंग टाइप का अपना स्टैंड लिए हैं, तो बहुत से ऐसे साइंटिस्ट हैं जो इनका विरोध कर रहे हैं और कईयों ने रिजिग्नेशन दिया है इनके विरोध में। तो इसीलिए ये मेनली न्यूज में है कि देयर हैज बीन द सो मच अपोजिशन। पहला जो अपोजिशन आ रहा है दैट इज फ्रॉम द, यहाँ पे दिया हुआ है, एक रेजिग्नेशन हुआ है। 2 कंप्लेन इनके खिलाफ 2024 में ही डाल दिया गया था कि ही इज वर्किंग इन सच ए मैनर जो साइंटिफिक जो हमारी रिसर्च है उसके खिलाफ है। कहीं ना कहीं आप पैसे कट करवा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप जितनी भी चीजें हैं वो कैपिटलाइज कर रहे हैं, हर प्रोडक्ट को इस तरीके से बना रहे हैं जिससे केवल बेनिफिट हो। कई बार साइंस का यूज इस तरीके से होता है कि समाज का फायदा हो। जैसे होता है ना, कोई मेडिसिन आप बनाते हैं, कोई आप टेस्ट बनाते हैं, जैसे टीबी का मेडिसिन है, तो कहीं ना कहीं वो साइंटिफिक लोग ही बनाते हैं, लेकिन उसका मेन पर्पज क्या होता है कि टीबी को खत्म किया जाए। ये तो होता नहीं है कि दवा बेच के सिर्फ कमाना ही मकसद है। तो कई चीजें ऐसी होती हैं जो सोसाइटी के लिए है, लेकिन इनका जो मेन है वो है कि कैसे न कैसे बिजनेस किया जाए हर चीजों का। तो इसीलिए कई साइंटिस्ट इनका विरोध कर रहे हैं और नियर अबाउट 3500 साइंटिस्टों ने ओपन लेटर लिखा है कि इनको इससे निकाल दिया जाए। लेकिन अब दिक्कत है कि उनको निकालने का प्रोसेस है वो बड़ा कठिन है। अब रॉयल सोसाइटी वो लग रहा है कि कहीं इस चक्कर में वो केस न कर ले, फिर जाके हम कोर्ट में फंसे, ये भी तो है। तो इसलिए जो रॉयल सोसाइटी है वो सोच रहा है कि क्या किया जाए, कि इन्होंने जो हमारा कोड है उसको तो वायलेट किया है, रॉयल सोसाइटी को पता है। अब यहाँ पे डिबेट आ जाता है कि आप अपने कोड को बचाने के लिए किस तरीके का एक्शन लेते हैं। तो यहाँ पे यही डिबेट आ रहा है कि रॉयल सोसाइटी को निकाल देना चाहिए इनको, या कहीं ना कहीं इस सब चीजों से बाहर हटके कंटिन्यू इसको इसका मेंबर रखना चाहिए। ओवरऑल यही डिस्कशन है। इसमें दिया हुआ है कि कई ऐसे जो नोबेल प्राइज के विजेता हैं उन्होंने भी इनके खिलाफ साइन किया है, रिजिग्नेशन दिया है। मस्क को इलेक्टेड किया गया था 2018 में, जब उन्होंने स्पेस एक्स पता है व्हाट इज द स्पेस एक्स? इस नहीं, वो तो अलग है। रॉयल सोसाइटी तो साइंटिफिक लोगों का ग्रुप है, साइंटिस्ट लोगों का। स्पेस एक्स जो है वो स्पेस स्पेस स्टेशन बनाया गया है। अभी तक स्पेस स्टेशन जो खासकर
जो हम लॉन्च पैड देखते हैं ना, जैसे इसरो का हम देखते होंगे कि चंद्रयान को हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, तो वो स्पेस स्टेशन होता है, ठीक है, खासकर जहां से हम लॉन्च करते हैं। अब ऐसा जो था अभी तक मैक्सिमम गवर्नमेंट का था, प्राइवेट कंपनीज उसमें नहीं थी। पहली बार एलन मस्क इसमें एंट्री किए थे और उन्होंने जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए बनाया था दैट वाज द स्पेस एक्स, जहाँ से प्राइवेट प्लेयर खुद का लॉन्च करेगा। और इसी के लिए माना जा रहा था कि प्राइवेट कंपनीज का एंट्री भी एक बड़ा कदम है, इसीलिए इनको रॉयल सोसाइटीज में एंट्री दी गई थी, क्योंकि इन्होंने इसमें बहुत पैसे लगाए थे। क्लियर हो रहा है स्पेस एक्स क्या है और कहाँ पे इन्होंने पैसे लगाए थे। तो उसी के लिए इनको उसकी मेंबरशिप दी गई थी 2018 में। यहाँ पे वही दिया है कि रॉयल सोसाइटी प्रायोरिटाइज इस एथिकल कोड ओवर लीगल रिस्क। रॉयल सोसाइटी अपने नैतिक संहिता को कानूनी जोखिम से अधिक प्राथमिकता देती है या नहीं, ये देखना है कि उसको निकालते हैं तो लीगल कार्रवाई स्टार्ट होगा। लीगल कार्रवाई में वो स्ट्रांग होंगे क्योंकि उनके पास पैसे बहुत हैं, बहुत उनके पास स्ट्रांग वकील होंगे, ठीक है। और यहाँ पे है कि ये जो रॉयल सोसाइटी अपने प्रेस्टीज को बचा के रखता है या नहीं रखता है। नेक्स्ट न्यूज है, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल्स नॉट कनेक्टेड टू ग्रांट ऑफ सिटीजनशिप सेज द ऑफिशियल। तो अभी एक पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल। अभी तक हमारे पास इस तरीके का बिल नहीं था, एक्ट नहीं था कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उसको किस तरीके से डील किया जाए। जैसे होता है ना कि फॉरेनर्स आया, किसी होटल में रुका, तो होटल का क्या जिम्मेदारी है कि बताना ना कि फॉरेनर्स कोई आया है, कितने दिन रुक रहा है, और फॉरेनर्स को किस तरीके से करना है, ये सब चीजें कोई एक इकट्ठा रूल नहीं था, अलग अलग फ्रेगमेंटेड रूल थे। फ्रेगमेंटेड रूल का मतलब जैसे पासपोर्ट एक्ट हमारे पास था, तो पासपोर्ट एक्ट 1920 का था, पासपोर्ट एक्ट था 1920 का। रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्ट था वो 1939 का था। एंड वी हैड द फॉरेनर्स एक्ट 1946 का था। तो बहुत पुराने पुराने एक्ट थे, उसके थ्रू हम लोग करते थे। लेकिन उस समय का जो कंडीशन था अलग था, अब कंडीशन बदल गया। तो अब इस कंडीशन में हम चाहते हैं कि नया लॉ बना के लाए ताकि हम फॉरेनर्स को, क्योंकि फॉरेनर्स आते हैं, कई फॉरेनर्स ऐसे आते हैं कि यहीं पे बस जाते हैं, रुक जाते हैं। फिर क्या होता है कि यहाँ पे जब रुकने लगेंगे ज्यादा फॉरेनर्स तो यहाँ के लोगों की जॉब चली जाएगी ना, क्योंकि जॉब करना है, फिर आपसी लड़ाइयाँ होती हैं। कल्चर उनका अगर लार्ज नंबर में आने लगे तो क्या होगा, उनका कल्चर हम पे इम्पोज होने लगेगा। इस तरीके से जो लोकल्स लोग हैं उनसे क्या होती है, थोड़ा बहुत लड़ाइयाँ होने लगती हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लाए हैं कि प्रॉपर तरीके से कि एक एक्ट हम लाए जो फॉरेनर्स को डील कैसे करना है उस पर पूरा वो बताए क्लियर कट में। तो ये डिफरेंट एरियाज में डिस्कस किए गए हैं कि व्हाट विल बी द कॉम्प्लायंस। पहली ये दिया गया है कि इसके अंडर में हमने क्या क्या रिपील किया, जो पुराने रूल थे उनको हटा दिया, क्योंकि पुराने रूल का अब काम नहीं है, क्योंकि उस जमाने में अलग तरीके की टेक्नोलॉजी थी, अब वो लागू नहीं होगा। तो हमने क्या क्या रिपील किया है, पासपोर्ट एक्ट 1920 का रिपील कर दिया। रिपील का मतलब उसको खारिज कर देना, हटा देना। रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 को हमने हटाया है, फॉरेनर्स एक्ट 1946 को, एंड इमिग्रेशन करियर्स लायबिलिटीज एक्ट 2000 जो बना था उसको हटा के एक एक्ट में बना दिया है ताकि कंफ्यूजन हम कम से कम कर सकें। और इस एक्ट के अंडर में हमने क्या किया है, एक हमने ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन बनाया है, एक बॉडी है जो मॉनिटर एंड रेगुलेट करेगी कि किस तरीके से इमिग्रेशन जो लोग हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं। और होटल्स का क्या क्या काम होगा यहाँ पे दिया हुआ है कि जो होटल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जहाँ जहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं उनको वो कितने दिन रुक रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं, वो ट्रैक करके आपको रिपोर्ट करना है। या तो पुलिस को रिपोर्ट कर दिए या तो जो हमने बॉडी बनाया है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, इसको आप कीजिए, ठीक है। तो ये हमने इसके थ्रू मैंडेटरी बना दिया है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इस बिल का, ठीक है। इस बिल का मेन ऑब्जेक्टिव है कि पुराने जो लॉ है उनको सिंप्लीफाई कर दे। पहले कठिन तरीके से लिखा गया था, चीजों को अब सिंप्लीफाई वे में आप बता दें कि होटल को ये पता होना चाहिए कि उसका काम क्या है। कि कोई फॉरेनर्स आया, एड्रेस मांगे, एड्रेस मांगते ही पता चलते ही पुलिस स्टेशन को बताएं कि एक हमारे फॉरेनर्स आए हैं, वो इस देश के हैं, इस पर्पज से आए हैं, इतने दिन के लिए रुकेंगे। तो जितनी भी चीजें वो सिंप्लीफाई की जाएगी कि मुझे कंफ्यूजन ना हो, कि होटल वाले ये ना कंफ्यूज हो कि मेरा क्या काम है, यूनिवर्सिटी वाले ये कंफ्यूज ना हो कि मैं क्या करूं। तो साफ साफ लिखा होगा तो चीजें सिंपल होंगी। फिर है कि इंप्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड रिड्यूसिंग कंप्लायंस बर्डन। रिड्यूसिंग कंप्लायंस बर्डन का मतलब ये नहीं कि आपको पता नहीं है, फिर आके कोई इंस्पेक्टर आपको रेड मारा, फिर पता चले कि आपने बताया क्यों नहीं,
तो क्या होगा, कंप्लायंस बर्डन होगा ना, तो उसको कम करके क्लियर कट में हम उसको कन्वे करेंगे। और इससे क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो भी बिजनेसमैन है उसको पता रहेगा कि मेरा क्या अधिकार है, कितने दिन रुकना है, कितने दिन बाद जाना है, किसको रिपोर्ट करना है, ये सब क्लियर कट में रहेगा। तो इमिग्रेशन जो हमारा बिल है उसका मेन पर्पज यही है। तो यू शुड बी नोइंग, पूछ सकता है कि जो अभी हमने बिल पास किया है, नाम क्या है, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल। जो अभी एक्ट बनेगा तो उसको नाम हो जाएगा इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025। सेंटर आस्क गुजरात कोर्ट टू सर्व यूएस समन ऑन द अदानी। तो अदानी के खिलाफ इस समय यूएस में एक कंप्लेन रजिस्टर्ड किया गया है, एफआईआर, जिसमें यह कहा गया है कि अदानी ने अपना कोई कॉन्ट्रैक्ट था गवर्नमेंट से, और उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू गवर्नमेंट किसी कंपनी को ढूंढ रही थी जिसको वो अपना सोलर एनर्जी प्लांट बैठाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देना चाहती थी। गवर्नमेंट कई चीज कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू करती है ना। तो अदानी ने उसके लिए क्या करा है कि घूस दिया है ऑफिसर को, और घूस देके उन्होंने ना ही कॉन्ट्रैक्ट, नॉर्मल है, आप भी देखेंगे कि शराब का ठेका यहाँ लेना होता है, लोग घूस देते हैं, ठीक है। कोई भी ठेका हो कहीं का, आपका नदी का ठेका लेना है कि यहाँ पे नाव कौन चलाएगा, कहाँ से मछली निकालना है, या किसी फॉरेस्ट एरिया में कितना प्रोड्यूस होगा, उसको ठेका होता है। सड़कों का ठेका होता है, ठेकेदार लोग लेते हैं। तो क्या होता है, गवर्नमेंट को घूस देके, ऐसे नॉर्मल नॉर्मल तो ऐसा है कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि बिडिंग हो, जो ज्यादा पैसा दे, ठीक है, उसको दिया जाए, या तो जो सस्ते में हमारा काम करा दे। दो काम होता है कि रोड सस्ते में बनवा दे गवर्नमेंट, उसको दे दे, और क्वालिटी अच्छा रखे, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर आप जब ब्राइब देने लगते हैं तो कहीं ना कहीं बाद में फायदे के लिए आप क्वालिटी कम कर लेंगे। तो यही इन पे आरोप है कि इन्होंने ब्राइब दिया था टू परचेज एनर्जी एबव द मार्केट रेट, कि हमारा जो मार्केट रेट से ज्यादा में सरकार खरीदे। एक है कि मैं बनाऊंगा सोलर एनर्जी, तो उसका रेट जो फिक्स होगा वो ज्यादा होगा, तो उस कंपनी को फायदा होगा। तो ये सब केसेस चल रही हैं। और ये जितना भी है कि मानिए कोई इंडिया का आदमी है, क्राइम जाके किसी विदेश में कर रहा है, तो लॉ अलग अलग होता है ना। तो एक इंटरनेशनल लॉ होना चाहिए जो दूसरे देश में भी अगर आप कोई क्राइम करते हैं तो आपको पकड़ के लाके अपने देश में केस चला सके। तो ये जो चीजें हैं वो हमारा हेग कन्वेंशन के थ्रू होता है। हेग कन्वेंशन कि किस तरीके से हम एक्स्ट्राडाइट करेंगे, किस तरीके से दूसरे नेशंस को हम कन्वे करेंगे, कि वहां के गवर्नमेंट से हम परमिशन लेंगे, ये सब चीजें हेग कन्वेंशन के थ्रू होता है। जो वहां का लॉ है जिसके थ्रू यूएस केस चला रहा है, उसका नाम है कि फॉरेन करप्शन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट 1977। इसके थ्रू यूएस वहां पे करप्शन का चार्ज इन पे लगाया हुआ है। नाउ जीएस पेपर 3 को हम देखते हैं। पहला जो न्यूज है, रिटेल इन्फ्लेशन 7 मंथ का लो है। तो व्हाट इज द इन्फ्लेशन, महंगाई दर, ठीक है। महंगाई दर का एक हम कैप लेके रखते हैं, 4 से 6% तक रहे, वो उतना हमारा है। मिनिमम 2%, तो 2% से 6% के बीच में हम महंगाई को रखना चाहते हैं। तो हमेशा गवर्नमेंट चाहती है कि बैलेंस रहे, उसके लिए डिफरेंट इंडेक्स निकालती है, और इस इंडेक्स का प्रिपरेशन जो है वो एनएसओ करता है, ठीक है। एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, एनएसओ, ठीक है। ये सब चीजें आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो ये डिटेल में बताया जाएगा। दूसरा न्यूज है, सोलापुर हैंडलूम इंडस्ट्री स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन। तो हैंडलूम जो इंडस्ट्री है, कहीं ना कहीं अब हमारे पास पावर मशीन्स आ गए हैं, पावर लूम्स आ गए हैं, तो वहाँ पे हैंडलूम का जो है वो नीड थोड़ा थोड़ा कम होने लगा है। जितनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी तो क्या होगा, कम टाइम में ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, और कम लोग की भी जरूरत होती है। जैसे एकदम पहले हैंडमेड था, तो एक आदमी पूरे दिन अगर ये डायस बनाया, ये पोडियम बनाए, तो उसका क्या लग जाएगा, पूरा 1 दिन या 2 दिन लगेगा। लेकिन मशीन्स के थ्रू सब कट कट करके कर दें तो मुश्किल से 1 घंटे में सब हम लोग असेंबल कर देंगे, ठीक है। पहले सब कुछ काटे हाथ से ही, एक मशीन लाए फटाक से कट करते हैं। आजकल मशीन देख तो कट करते हैं ना, 5 मिनट के अंदर में ही कटर जो होता है उससे कट कर दें। तो चीजें कहाँ कहीं ना कहीं जब मशीनें बढ़ जाती हैं तो वो क्या होती हैं, टाइम कम लगता है, प्रोडक्शन ज्यादा होता है। लेकिन दिक्कत यह है कि फिर लोगों की जरूरत कम पड़ेगी, तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा। एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, जो लोग मानिए पहले से हैंडलूम में काम कर रहे हो वो कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे है कि हैंडलूम जो सोलापुर है, सोलापुर अगर कभी देता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हैंडलूम इंडस्ट्री के लिए फेमस है, जहाँ पे
जादी, जादी का नाम सुना है? जादी चादर, जादी, जादी यहाँ पे, हाँ वहाँ पे फाइन गोल्ड एंड सिल्वर थ्रेड के थ्रू इसको बनाया जाता है। एक तरीके से डिजाइन होता है, जैसे आप लोग जैसे जाते होंगे साड़ी के लिए तो देखते होंगे ना कि ये आपका किसी पर्टिकुलर एरिया का है, पढ़ होते होंगे ना कि बनारसी साड़ी है, चंदौरी साड़ी है, इस तरीके का चिकन होता है, चिकन जो लखनऊ वाला क्या बोलते हैं उसको, चिकन सूट कुछ ऐसे बोलते हैं, तो अलग अलग एरिया का होता है। तो जो सोलापुर का है वो जारी साड़ी है, वहाँ का फेमस है, होता है ना उस एरिया का एक टैग दे दिया जाता है। तो सोलापुर का ये काफी फेमस था, वहाँ का खासकर चादर भी बनाया जाता है इस हैंडलूम्स में। तो ये है कि यहाँ के जो हैंडलूम्स है परिवारें उसमें शामिल थी या बंद हो रही हैं, तो उनका रोजगार नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं हमारा एक तो जो आर्ट एंड कल्चर है, जो हाथ से बनाया जाता है उसमें ज्यादा आर्ट एंड कल्चर होता है। मशीन से आप बनाइए तो सब एक जैसे दिखेंगे और कुछ खास आपका लुक नहीं आएगा। जैसे पेंटिंग है, हाथ से बनाया जाए अलग लुक आएगा, और आप प्रिंट आउट निकाल दे तो अलग लुक आएगा। जो हाथ से बनाए होंगे उसमें एस्थेटिक ब्यूटी ज्यादा बेहतर होती है। तो ये सब चीजें यहाँ पे डिस्कस हुई है कि गवर्नमेंट ना ही सपोर्ट कर रही है और काफी वहाँ के लोगों को दिक्कत हो रहा है। तो ये सब चीजें आप पढ़ेंगे तो कभी क्वेश्चन में आता है कि सोलापुर किस लिए फेमस है, तो ये सब आप कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हाइड्रोलिक स्लज रोबोट डिप्लॉयड इन SLBC। दिस इज द श्री सैलम लेफ्ट बैंक कैनाल, SLBC। अब यहाँ पे है कि हाइड्रोलिक स्लज रोबोट, हाइड्रोलिक स्लज रोबोट। अब देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, हम इसका यूज कर सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में या डिजास्टर मैनेजमेंट में, कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डे टू डे लाइफ में यूज कैसे हो सकता है। जैसे आपको नाला साफ करवाना है, किसी इंसान को भेजना है, तो एक तो इसका जो डिग्निटी है, उसका जो होता है ना इज्जत, उसके खिलाफ होगा कि आप नाले में उतार रहे हैं। और दूसरा चीज है कि रिस्क भी होता है, कई बार जहरीली नसाएं वहां पे गैसेस निकलती हैं, डेथ हो जाता है। फिर कई बार कीड़े आप होते हैं, हो सकता है कि नीचे सांप हो वो काट दे, या कोई और तरीके का ऐसा स्पीसीज हो, ठीक है, शीशे वगैरह हो उससे पैर कट जाए। तो उसको हम लोग सॉल्व करने के लिए रोबोट को ला रहे हैं। रोबोट जाएगा तो रोबोट ना ही डूबने का डर होगा, ना ही उसके किसी डिग्निटी का होगा, और हम अपना काम भी करा लेंगे और चीजें इजी होगी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रॉपर तरीके से यूज कैसे हो सकता है, उसका एक एग्जांपल हम ये दे सकते हैं। अब हमने स्टार्ट किया है कि इस तरीके के रोबोट को, जो नाले हैं या जहाँ पे कैनाल है उसके किनारे कुछ कुछ अंदर जाके काम करना है, सफाई करना है, जो भी काम है, तो हम रोबोट को भेजेंगे। ऐसे पानी, कोई कनाल है, कनाल में भी बहुत तेज कभी कभी पानी फ्लो करता है, उसमें भी लोग डूब जाते हैं। जो नहर होती है उसमें भी तो पानी कभी कभी तेज होता है। तो वो सब चीजों में हम रोबोट का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि एक रोबोट का यूज हो रहा है कनाल को साफ करने में या बनाने में। व्हाट आर द रिसेंट जीडीपी डेटा रिवीजन रिविल्स। तो यहाँ पे खासकर जो जीडीपी में किस तरीके से हम डेटा यूज करें। व्हाट इज द जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जीडीपी यही होता है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। यहाँ पे है ना जीडीपी डेटा रिवीजन। इसमें खासकर ये डिस्कस किया गया है कि किस तरीके से जीडीपी को मेजरमेंट हमने करा है, किस तरीके से हमने मेथड चेंज करने से ओवरऑल जो आउटपुट आता है वो चेंज हो सकता है विदाउट द रियल चेंज इन द आउटपुट। होता है ना कि जैसे आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन का मतलब होता है कि एक देश के जो बॉर्डर होता है उसके अंडर में कितना चीजें प्रोड्यूस हो रही है एक साल में, वही जीडीपी काउंट होता है। जैसे होता है ना कि 2024 में 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक कितने चेयर्स हमने प्रोड्यूस किया, बनाए, वो एक जगह लिख लेंगे। कितने पेन बनाए, कितने टेबल बनाए, कितने शीशे बनाए, पूरे देश का प्रोडक्शन जब जोड़ जोड़ के लाएंगे वही होगा। तो कभी कभी होता है कि हम प्रोडक्शन जब ये काउंट करते हैं तो कई चीजें छूट देते हैं कि ये हम प्रोडक्शन में नहीं काउंट करेंगे, ये प्रोडक्शन नहीं है। या किसी चीज को हम ज्यादा वेटेज दे देते हैं कि इसको प्रोडक्शन को हम 3% लेंगे, शीशे के प्रोडक्शन को हम 1% लेंगे, होगा, हो गया ना। तो ऐसे में क्या होगा, जब आप मेथड चेंज करते हैं तो ओवरऑल जो रिजल्ट होता है वो भी चेंज होने लगता है। तो वही यहाँ पे डिस्कशन किया गया है किस तरीके से चेंजेज हुई हैं, किस तरीके से हमारा ओवरऑल प्रोडक्शन में आउटपुट चेंज कर दिया गया। तो ये आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे काफी डिटेल में पढ़ाया जाएगा।
नेक्स्ट न्यूज है डेंजरस इल्यूजन कास्ट बाय द डेवलपमेंट रैंकिंग्स। तो डेंजरस इल्यूजन कास्ट बाय द डेवलपमेंट रैंकिंग, आप लोग इंटरनेशनल लेवल पे सुनते होंगे कि एचडीआई में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का ये रैंकिंग है, नॉर्वे का ये रैंकिंग है, यूएस का ये रैंकिंग है। तो इस आर्टिकल में यही डिस्कस किया गया कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो यूएन निकालता है वो कहीं ना कहीं फ्लॉड है, सही तरीके से नहीं निकालता है, उसमें बहुत से दोष हैं। पहला इन्होंने दोष निकाला है, जो फ्लॉ निकाला है, दैट इज द कि आप केवल जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालते हैं तो आप सिर्फ निकालते हैं कि जो ह्यूमन का सुख सुविधाएं हैं वो कितनी बढ़ी, जैसा है कि कितना लोगों का इनकम बढ़ा, एजुकेशन में कितना बढ़ा, ठीक है, कितने लोगों का जो सैलरी है वो बढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम जो काउंट करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी कि कितने साल इस देश के लोग जी रहे हैं, कहीं पे होता है कि लोग 50 साल पे डेथ हो जाती है, कहीं पे 60 साल पे होती है, कहीं पे 80 साल पे होती है, कहीं पे एवरेज जो लोगों का डेथ होता है वो 90 साल पे होता है अलग अलग। इटली में लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, जापान में लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आप अफ्रीकन कंट्रीज में जाइए जहाँ पे हेल्थ की सुविधा नहीं है, लोगों की डेथ बहुत जल्दी हो जाती है, 60-70। इंडिया का भी बहुत कम था, धीरे धीरे हम बढ़ा के लेके जा रहे हैं, 78 पे पहुंचा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, एक आदमी अपने लाइफ में मतलब एवरेज कितना दिन जीता है कोई भी देश का, तो वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी से काउंट होता है, ठीक है। तो एचडीआई में क्या क्या काउंट होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन की एवरेज जो लोग का एजुकेशन लेवल है, 10th है, 12th है, ग्रेजुएट है, और इनकम कितना लोग कमा रहे हैं। लेकिन इसमें रियल पिक्चर ये नहीं दिखा रहा है कि ठीक है आप कमा ज्यादा रहे हैं, लेकिन ज्यादा कमाने के लिए आप अगर पेड़ों को ज्यादा काटते हैं, ज्यादा कमाने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये डेवलपमेंट ज्यादा सस्टेनेबल तो है नहीं। रियल में तो दिखाएगा कि आपका इनकम बढ़ रहा है। तो वही ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो डेवलप्ड कंट्री है जिनको टॉप में दिखाया जाता है, जैसे नॉर्वे है, आयरलैंड है, स्विट्जरलैंड है, ये टॉप रैंक आते हैं, लेकिन उनका तो इनकम ज्यादा हो जाता है, लेकिन ये नहीं दिखाया जाता कि वो इन्वायरमेंट के लिए कितना निगेटिव इंपैक्ट करते हैं। अगर वो लिया जाए तो वो सही में टॉप पे नहीं आएंगे। असली रैंकिंग उनका होना चाहिए कि आप इनकम भी बढ़ा रहे हैं, साथ साथ अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, यही होना चाहिए। तो यही इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं एचडीआई जो है वो फेल्ड है, लॉन्ग टर्म के लिए ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। आप ये 50 साल, 100 साल, 200 साल चलाएंगे, उसके बाद क्या होगा, इन्वायरमेंट डिग्रेड करेगा। जब जंगल बचेंगे ही नहीं तो आप आगे जी कैसे पाएंगे, सांस कैसे लेंगे, ऑक्सीजन कैसे होगा, ठीक है। जब आप पूरे नदियों को पल्यूट कर देंगे तो आपका जो पानी है, जो ग्राउंड वाटर है, वो भी तो पल्यूट होगा धीरे धीरे, फिर आप पानी कैसे साफ पिएंगे। तो ये सब चीजों को इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया है कि जो फ्लॉड मॉडल है कैसे उसको इम्प्रूव किया जाए, और उसमें इन्होंने सजेशन दिया है कि हमें सस्टेनेबल जो तरीका है रहने का, जिसमें हम बैलेंस करें डेवलपमेंट को, वो हमें लेके आना चाहिए। शुड इंडिया फोकस ऑन इट्स ग्लोबल इमेज और द डोमेस्टिक कॉन्सर्न। तो इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया है कि इंडिया के पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है, जैसे कोई भी देश क्या करता है कि अपने दुनिया में ये दिखाने की कोशिश करता है कि हम कितने बेहतरीन हैं, और दूसरा है कि बेहतरीन दिखाने के लिए आपको उस तरीके से चीजों को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा कि कोई विदेश से आए तो वो हमें सब कुछ साफ साफ दिखे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको सुंदरीकरण शहरों का कराना पड़ेगा। जैसे कि G20 का समिट अभी हुआ था, भारत उसका हेड था, हमारे देश में हुआ था, दिल्ली में और भी जगहों पे हम लोग कर रहे थे इसका समिट। तो क्या कर रहे थे, दिल्ली का जितना भी स्लम एरिया है उसको ढक दे रहे थे, पेंट वेंट करवा रहे थे, सुंदर पेड़ ओड़ लगवा रहे थे, अच्छा अच्छा डिजाइन बनवा रहे थे, जगह जगह G20 का लोगो को लगवा रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था, पैसे लग रहे थे, करोड़ों में हजारों करोड़ हम लगा रहे थे। तो क्या हम कर रहे थे, ये दिखा के हम दुनिया को ये दिखा रहे थे कि कितना सुंदर है इंडिया, कितना साफ सुथरा है, कितना अच्छा है। लेकिन रियलिटी में क्या है, हम ढक रहे थे ना पीछे के स्लम को, तो ऐसे ही है। स्लम में तो स्कूल बनवाए नहीं, स्लम में तो नालियां बनवाई नहीं, सिर्फ इमेज के लिए हमने क्या करा, बहुत से पैसे लगा लिए। तो यहीं पे डिस्कस हो रहा है कि हमें ग्लोबल इमेज बनाना है कि सच में जाके जो पैसे हम पेंटिंग वेंटिंग करा रहे हैं, उस पैसे को स्कूल बनवाए, नाला बनवाए, वहाँ का पानी का आप पाइप लगवाएं, ये सब करवा सकते हैं उसी पैसे में। तो यहाँ पे लोगों का मानना है कि मैक्सिमम लोग जो यहाँ पे इन्होंने जगह जगह सर्वे किया है, तो सर्वे में ये पाया गया है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो एजुकेटेड हैं, जो अवेयर हैं, और मैक्सिमम लोगों का ये मानना है कि आप इमेज बनाने से ज्यादा आप अपना
डेवलपमेंट पे फोकस कीजिए। जो डेवलपमेंट होगा तो लोग वैसे भी देखेंगे। सिर्फ इमेज बनाने के चक्कर में आप ऊपरी दिखाएंगे तो वो छलावा होगा, कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो रिपोर्ट आएगा ना कि यहाँ पे भूखमरी से लोग मर रहे हैं, यहाँ पे लोगों को नाले में डूब के मर रहे हैं, इस तरीके का न्यूज आएगा, क्योंकि आपने डेवलपमेंट सही में नहीं किया। तो इमेज आखिर में खराब हो जाती है। तो इमेज से ज्यादा हमें किस पे ध्यान देना है? डोमेस्टिक जो चीजें हैं, डोमेस्टिक जो कॉन्सर्न है, जो हमारी नीड है, उस पर करना है। तो ओवरऑल यही है कि क्या भारत को अपनी वैश्विक छवि पर ध्यान देना चाहिए या घरेलू मुद्दों पर? तो ओवरऑल यही है कि घरेलू मुद्दों पे हम ज्यादा ध्यान दें तो ओवरऑल हमारा डेवलपमेंट जो इमेज है वो बाद में बन जाएगा। इज गवर्नमेंट स्टिफलिंग द ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर? तो ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर क्या होता है? ऑनलाइन गेमिंग में हम लोग क्या करते हैं? पैसा लगाते हैं कि आईपीएल में ये जीतेगा, इस तरीके का होता है। उस पर कुछ होता है ना, आप खुद का टीम बना लेते हैं, फिर उसको स्कोर होता है, ये सब चीजें होती हैं। ड्रीम 11 इस टाइप का, और ये ऑनलाइन गेमिंग ही है। ड्रीम 11 आजकल बहुत फेमस है, लोग अपना लगा रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इसको रेगुलेट प्रॉपर मैनर में करे तो इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आने वाले टाइम में ऑनलाइन गेमिंग बढ़ेगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे, क्योंकि मोबाइल डिजिटल मोड में हम ज़्यादा जा रहे हैं। तो इन्होंने यही दिया है कि आने वाले टाइम में जो इसका कारोबार होगा, अभी इसका 33,000 करोड़ का कारोबार है ओवरऑल पूरे इंडिया में, ये 2000 मुश्किल से 4-5 सालों में दुगुना हो जाएगा, 66,000 करोड़ जाने वाला है। तो वही कह रहे हैं कि रेगुलेशन इसका अगर प्रॉपर हो, ठीक है। क्योंकि इंडिया में देखिएगा स्मार्टफोन का नंबर भी बढ़ रहा है, लोग ज्यादा से ज्यादा स्मार्टफोन ले रहे हैं। जब स्मार्टफोन लेंगे तो कहीं ना कहीं दे विल इंटर इनटू द ऑनलाइन गेमिंग। तो यहाँ पे स्मार्टफोन अभी जो है नियर अबाउट 65 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है। आने वाले टाइम में ये बढ़ के बहुत ज्यादा होने वाला है। तो साथ साथ ऑनलाइन गेमिंग भी बढ़ेगी। तो इकोनॉमिक सर्वे ने यही कहा है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करना चाहिए। जो हर्डल क्रिएट कर रहे हैं वो हमें, जैसे कई बार ऑनलाइन गेमिंग को हम जुए के तरीके से देख के, गैम्बलिंग के तरीके से देख के बैन ही कर देते हैं। तो बैन करने से ज्यादा अच्छा है कि आप उसको रेगुलेट कीजिए कि इलीगल पैसा न लगे, उसमें करप्शन ना हो, व्हाइट मनी, ब्लैक मनी को कन्वर्ट करके व्हाइट मनी में नहीं किया जाए। ये सब पे ज्यादा गवर्नमेंट को ध्यान देना है, ठीक है। तो यहीं पे है। अब देखिएगा कि इसको गलत जैसे हम लोग करके ये दिखाते हैं कि बहुत बुरा है ऑनलाइन गेमिंग, तो इस पे जो टैक्स हमने लगाया है 28% जीएसटी लगाया है, कि मतलब 100 रुपए कोई कमा रहा है तो उसमें से 28 रुपए आपको टैक्स के रूप में देना है। तो कहीं ना कहीं आप क्या चाहते हैं कि लोग लगाए ही नहीं। तो ये कहीं ना कहीं क्या करेगा, लॉन्ग टर्म के लिए जो लोग लगाएंगे चुपके से लगाएंगे, इलीगल तरीके से बताएंगे नहीं। तो ऐसे में फ्रॉड का कंडीशन ज्यादा होता है कि आपने लगाया, वो पैसे घपले कर दिए, तो पुलिस में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने तो आप प्रॉपर तरीके से आप फॉलो नहीं कर रहे थे, क्योंकि आपको अपना टैक्स बचाना था। तो अगर टैक्स कम हो तो लोग क्या करेंगे, टैक्स भी देंगे, साथ साथ लीगल तरीके से करेंगे कि कुछ हो जाए, करप्शन हो तो जाके केस भी रजिस्टर्ड करें। ओवरऑल डिस्कशन इसमें यही है। नेक्स्ट न्यूज है, पार्लियामेंट्री पैनल आस्क सेंटर टू स्पेंड मोर ऑन द एग्रीकल्चर, रीनेम मिनिस्ट्री। तो हो रहा है कि जो एग्रीकल्चर, अभी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इसका नाम है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से ये समझ में आता है कि केवल इसमें एग्रीकल्चर हो रहा है, जो उसके लेबर है एग्रीकल्चर में, तो फार्म लेबर भी तो काम करते हैं। जब आपको धान बोना होता है, जब आपको कटाई होती है, हार्वेस्टिंग होती है, तो लेबर की जरूरत होता है, केवल फार्मर तो काम नहीं करता है। तो इसीलिए आप जो नाम बदल देंगे तो इसमें लगेगा कि जो फार्म लेबर है उनको भी हम ऐड कर लेंगे, और उनके लिए भी कुछ अगर मेजर लाना है, जैसे अभी हम लोग प्रधानमंत्री सन्निधि योजना दे रहे हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री निधि योजना ये सब देते हैं ना, 6,000 हम लोग देते हैं पूरे साल में, 2-2 हजार का इंस्टॉलमेंट करके। तो सिर्फ इसमें फार्मर्स को दे रहे हैं, लेकिन लेबर जो काम कर रहा है उसको भी तो जरूरत है खाने पीने जीने की। तो उसके लिए क्या है, तो हम कह रहे हैं कि अगर नाम थोड़ा सा चेंज कर दे तो इंडस्ट्री क्या करेगी, जो मिनिस्ट्री है वो क्या करेगी, जो फार्म लेबर्स है उनके लिए भी पॉलिसी प्रॉपर तरीके से बनाएगी, तो उसमें भी हम इसको इंक्लूड करेंगे। साथ साथ इन्होंने कहा है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है, व्हाट इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस? मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये होता है कि आप जब भी कुछ जैसे खरीफ का टाइम आया, जब बोने का टाइम आता है, तो उसके पहले गवर्नमेंट एक अपना लिस्ट निकालती है कि धान अगर आप मुझसे बेचेंगे, जब हार्वेस्टिंग होगा तो धान का गवर्नमेंट इतने रुपए पे खरीदेगी, इतना क्विंटल।
तो किसानों को ये लगता है कि जब हम मार्केट में सही रेट नहीं मिलेगा तो हम सरकार से जाके बेच देंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की इतना आपको कम से कम आपके धान के लिए मिलेगा, आपके गेहूं के लिए मिलेगा, जो वीट है, जो राइस है, ठीक है, पैडी, तो उसी को हम एमएसपी कहते हैं। अब एमएसपी में हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक क्रॉप को अलग से एमएसपी देंगे। ऑर्गेनिक क्रॉप का मतलब होता है कि जिसमें आप फर्टिलाइजर जो केमिकल्स है वो यूज न करें, केवल आप अपने खेत का ही चीज यूज करें और खेत में ही जो आपने नेचुरल रूप से बनाया, जैसे आपने गोबर का यूज करके बनाया है, काउ डंग, उसका यूज करके अगर खाद बनाए तो वो सब ऑर्गेनिक में जाएगा। अदरवाइज इनऑर्गेनिक में क्या होता है कि आप केमिकल का यूज करते हैं, जैसे यूरिया डाल दिया और भी जितने भी फर्टिलाइजर हैं, आप पेस्टिसाइड हैं, जो कीटनाशक है, ये सब आप यूज करते हैं। एम एस स्वामीनाथन का यहाँ नाम दिया है। एम एस स्वामीनाथन हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर माने जाते हैं और उन्होंने एक मॉडल दिया था कि एमएसपी का जो रेट होना चाहिए, वो जो इनपुट लगा रहा है किसान उतना, प्लस उसके घर के लोग जो लोग काम कर रहे हैं उनका मजदूरी, और प्लस 50% उसका मुनाफा देके वो रेट होना चाहिए। अभी गवर्नमेंट वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं है किसानों को देने के लिए। फोर्टिफाइड राइस की बात हो रही है। फोर्टिफाइड राइस का मतलब होता है कि मानिए हमें सिर्फ दाल चावल रोटी सब्जी की जरूरत नहीं होती, हमें बहुत से और भी मिनरल्स का यूज होता है। जैसे हमें आयरन का यूज होता है, जिंक का यूज होता है, शरीर में तो और भी बहुत से मिनरल्स नीड होते हैं और वो नेचुरली किसी राइस में नहीं है, और होगा तो कम बेसी अधिक वो क्वांटिटी में होगा। तो हम चाहते हैं कि अलग से उन सब जितने भी मटेरियल है पॉलिश करके चावल को वो ऐड कर दे छोटा छोटा, ठीक है, होगा ना एकदम पेस्ट के फॉर्म में। आजकल तो चावल ये सब दाल पॉलिश आती हैं, पॉलिश में ही अगर हम वो सब मिनरल्स ऐड कर दे तो हमारा जो नीड है, जो हमारा एक विकास होता है शरीर का, वो प्रॉपर तरीके से होगा। अगर कुछ मिनरल्स नहीं होते हैं तो कुछ कुछ बीमारियां हो जाती हैं। जैसे औरतों को, लड़कियों को अनीमिया का बीमारी होता है जो आयरन की कमी के कारण होता है, ठीक है, जिसमें ब्लड जो काउंट सेल होते हैं वो कम होते हैं। तो फोर्टिफाइड राइस देने की बात हो रही है। यहाँ पे है यूरोप में जॉब और इंडिया में जॉब का लोगों का क्या परसेप्शन है। वहाँ पे एक सर्वे दिया हुआ है लोगों का। इंडिया में मैक्सिमम लोगों का मानना है कि अगर आप यूरोप में जाते हैं और वहाँ का जो लाइफ स्टाइल है, वहाँ पे जॉब करते हैं, तो वो मच बेटर है, वहाँ का सैलरी है वो बेटर है, तो लोग वहाँ पे जाना प्रीफर करते हैं। वो तो मुझे लगता है यहाँ पे सिर्फ 63% दिया है, मुझे लग रहा है कि 100% लोगों को यही लगता है कि यूरोप में अगर जाएं तो वहाँ पे लाइफ स्टाइल ज़्यादा बेटर है, वहाँ पे सब लोग जाना चाहते हैं। अगर वहाँ पे रेजिडेंस सबको दे दिया जाए तो बहुत कम लोग हैं जो इंडिया में ही रुकना पसंद करेंगे। वही इसका एनालिसिस इन्होंने पूरा दिया हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द टूडेज न्यूज। आज का जो मेन न्यूज था जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड था उसको हमने डिस्कस किया है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।